જય જીનેન્દ્ર, શિલ્પાબેન. જય જિનેન્દ્ર. રૂપેશભાઈ, થર્ડ પેપર કરી લીધું? ના ના, હજી તો બપોરે તો રિલીઝ થયું. આમ, સૌરભભાઈનો પેલામાં જવાબ હતો. હા, હતો એમનો. એમને પૂછેલું પણ કે કયો ટોપિક કરો, મેં જવાબ પણ આપ્યો હતો એનો. હમ. ચિંતન સ્ટડી લીડર ગ્રુપમાં. અચ્છા અચ્છા, હા જોયું મેં હા, અત્યારે. તો યા ઉઠવાના હશે જો લાસ્ટ વીક કંઈક લેટ થયું હતું ને એટલે પોસિબલી. યા યા બટ એમને તો લાસ્ટ ટાઈમ પણ કીધેલું જ કે યુ કેન કાઉન્ટ મી ઇન ફોર ફ્રાઈડે. હા. સો લેટ્સ વેઇટ ફ્યુ મિનિટ્સ. આવ્યા. જય જીનેન્દ્ર, સૌરભભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર સરોભાઈ. જય જિનેન્દ્ર શિલ્પાબેન. કેવી રહી એક્ઝામ? યા ગોઈંગ વેલ. સિલી મિસ્ટેક્સ કરી છે મેં. થાય થાય. એટલીસ્ટ એક આઈડિયા આવે ને આપણને કે આપણે ક્યાં આગળ ભૂલ થઈ રહી છે. હમ. હમ. મારે ઘણા અત્યારે સુધીમાં તો એવું થતું કે પહેલા વર્ષમાં તો એ જે અમને મૂડર ઉપર આવતું ને હમ. ઉપર પણ એક જ પ્રોબ્લેમ થતો કે જો તમે કર્સર ત્યાંથી હટાવી બી દીધું અને તમે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં ગયા ને, હમ. એન્ટર કી દબાવો એટલે તમારો આન્સર છે ને એ ચેન્જ થઈ જાય. ઓ. એટલે એ ઉપરથી નીચે કે નીચેથી ઉપર જતું રહે. હમ. મને ખ્યાલ નહોતો આવતો. અને પછી જયારે પેપર સબમિટ કરું ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ આ તો મેં જે આન્સર લખ્યો હતો એ સાચો હતો પણ આમાં ખોટો લખાઈ ગયો છે. ઓ. એટલે ઓલમોસ્ટ 2 સેમિસ્ટર સુધી તો એ વર્કઆઉટ કરવામાં થતું હતું. પણ ધ્યાન આપીને કરે તો ઘણું બધું સમજવા મળે છે એમાંથી. હમ. ના, ઇનફેક્ટ મિસ્ટેકથી તો વધારે સમજવા મળ્યું કે વધારે ધ્યાનથી વાંચવું હા, પડે. એજ. વાંચીએ. એક ટ્રુ એક ટ્રુ. શબ્દ ધ્યાનથી વાંચવો પડે છે. હમ. હા. એ લોકોએ બહુ સરસ ડિવાઇસ કરી છે, બધી એક્ઝામ પર પેટર્ન બી સારું છે અને હા, પેટર્ન સારી છે. સારા આવે છે. એટલે અમને તો ત્યારે પણ અમને મેડમ કહેતા કે તમારે 4 વાર ભણવાનું થાય એક જ કોર્સ, હમ. હમ. એક જ પેપર થી 4 વાર ભણવાનું થાય તમારું, જો તમે સરખી રીતના કરો તો. બરાબર છે. મને તો બેસ્ટ આજે જે અસાઇનમેન્ટ અપલોડ કરવાનું હતું ને એ લાગ્યું કારણ કે એને લીધે સ્ટડી થઈ, નહીતર તો પછી બેસીને હા, સ્ટડી. ટ્રુ ટ્રુ. એટલે એ પણ એ જ કહે પણ છે કરશો ને તો તમને એમાંથી ખ્યાલ આવશે કે હમ. અ, તમે અ, થોડું તમારી પ્રત્યે તમે થોડાક ઓનેસ્ટ થઈ જશો કે આજે છે એ હમ. ખાલી સાંભળ હા. પણ એનું કંઈક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું તો મને ખબર પડે કે આમાંથી મને કઈ સમજાય છે કે કેવી રીતના આગળ વધવાનું છે. આપણે શું છે કે મોટા ભાગે તો આપણે એ રીતના ટેવાઈ ગયા હોય કે લેક્ચર છે, લેક્ચર સાંભળી લીધું છે, હમ. એનું કઈ જાતનું અસાઇનમેન્ટ કે કોઈ જાતનું પૂછપરછ થવાની નથી, તો પછી એ સંભળાઈ ગયું એ સંભળાઈ ગયું, આગળ એનો કોઈ ઉપયોગ નથી થતો. હમ. અને ત્યાં ફક્ત પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ નહીં પણ એ સ્ટડી કરીએ તો વધારે જીવનમાં પણ કેવી રીતે ઉતરે એ પણ ખ્યાલ આવે. છે. હવે તો તમે મારો તો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે હવે અ, જ્યારે પણ કંઈ પણ નાનામાં નાનો બી પ્રસંગ બને ને તો તરત જ આમાંની કોઈક એક વસ્તુ મગજમાં આવી જાય તરત સામેથી કે આ આવી રીતના મેં વાંચ્યું તો આવી રીતના સમજ્યો તો હવે હમ. એને આ પરિસ્થિતિ છે એને મારે કેવી રીતના ઇન્ટરપ્રિટ કરવાની છે, તો હમ. ઘણો ફરક આવી જાય, ઘણો ફરક આવી જાય એમાં.
હમ. પણ એવું છે કે જેમ જેમ આપણને સમજણ આવવા માંડે ને એવી રીતના આપણને પછી અ, એની અંદરમાં જ રહેવું ગમે. પછી એમ હમ. આને બી સાંભળી લો, ઓને બી સાંભળી લો, આ પણ કરી લો, તે પણ કરી લો. એ બધું ધીરે 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 ઓછું થવા માંડે. ફોકસ થવા માંડે ને આપણે. એકદમ ફોકસ થઈ જાય. આપણે મંગળાચરણ કરી લઈએ. હા, હું હજી એજ કરી લો. કહેવાનો હતો. હા. તમારે કોને કરવું છે? કરી દો તમે બંનેમાંથી કોઈ બી. શિલ્પાબેન, તમારે કરવું છે? હા, કરી દો ચલો. હમ. हे पानी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, ये विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या कहे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे, परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. મને અમુક સવાલ છે એ હું પહેલા કરી શકું? હા હા. હા, શ્યોર. સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. મિનિટ હા. હું આજે છે ને વિતરાગ વિજ્ઞાન 3 નું રિવિઝન કરતી હતી, તો બુક મારી પાસે છે. આઈ ડોન્ટ નો તમારી પાસે ખુલ્લી છે કે હમ. નહીં, બીકોઝ એ અમુક પેજ છે ના ના, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી મારે. પર્ટિક્યુલર. હમ. હમ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, આઈ થિંક આ કર્મ, એક મિનિટ, કયા ચેપ્ટરમાં છે? હા, એ ચેપ્ટરમાં છે ને, હા, જો ઉપયોગવાળા ચેપ્ટરમાં છે, પાર્ટ 3માં. હમ. એમાં ઘણી જગ્યાએ હમ. રિપીટ થાય છે કે द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए, अम, તો એ જે મતિ જ્ઞાન ને શુદ્ધ જ્ઞાનનું કહે છે ને, એમાં મન પર્યાય જ્ઞાન એમાં કહે છે કે હા હા. ज्ञानी मुनिराज को હમ. इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने का। तो व्हाट व्हाट डज इट मीन बाय दिस, बिना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा? એટલે એમાં આ છે ને 4 ડાયમેન્શન્સ છે. જેમ આપણે હમ. કહીએ ને કે 2 ડાયમેન્શન્સ, 3 ડાયમેન્શન્સ, ડાયમેન્શન્સ. તો હમ. એવી રીતના કોઈ પણ જ્ઞાનની કોઈ પણ જે વિચારણા થાય કે આપણે હમ. ઉપયોગ છે એ શું છે, જ્ઞાન કોઈ પણ આપણે જ્યારે 4 ડાયમેન્શન્સ થી થઈ શકે છે. એક હમ. ડાયમેન્શન છે દ્રવ્ય. હમ. તો દ્રવ્ય એટલે શું? તો જે જ્ઞાન કરી રહ્યો છે, જે હમ. ઉપયોગનો પ્રયોગ કરી રહ્યો છે, ઉપયોગમાં રહી રહ્યો છે, એ દ્રવ્ય. અને એનો ઉપયોગ જેમાં જઈ રહ્યો છે એ દ્રવ્ય. દાખલા તરીકે તમે અત્યારના માની લો કે તમે શૈલનું કે કોઈ પણ ફેમિલી મેમ્બરનું કોઈનું પણ તમે ધ્યાન કરતા હો, કંઈક તમારા મગજમાં વિચાર આવ્યો કે એ હમ. અત્યારના શું કરતા હશે. તો હમ. એવા સમયે
એક દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તમે પોતે એક દ્રવ્ય છો, અને બીજું દ્રવ્ય જે છે કે એ જે પરિવારની જે પણ વ્યક્તિ છે એ બીજું દ્રવ્ય, એટલે એના ડાયમેન્શનથી. બીજું છે ક્ષેત્રથી, એટલે કયા એરિયામાં છે, કયા લેન્ડ સ્પેસમાં છે. તો એક જે ક્ષેત્ર છે એ ક્ષેત્રની અપેક્ષાથી એ ઉપયોગ આપણું લક્ષણ ઊભું થાય છે. ત્રીજું છે કાળથી, એટલે સમય શું છે. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે એમ કહીએ ઇન્ડિયામાં પરિવારના જનની આપે તો ત્યાં આગળ બપોરના 2:30 વાગ્યા હશે. તો એ જે બપોરના 2:30 નો સમય છે એ આપણને જો ઇન્ડિયાની સમજણ હશે તો ત્યારે કેવો તડકો હશે, કેવી પરિસ્થિતિ હશે, શું હશે, એ બધું આપણા ઉપયોગમાં આવે છે. અને ભાવ, અહીંયા આગળ ભાવ જે છે એ જે દ્રવ્યનો ભાવ છે, જે દ્રવ્ય ઉપયોગમય થઈ રહ્યો છે એનો ભાવ છે, અને સાથે સાથે જે દ્રવ્ય ઉપયોગમાં આવી રહ્યું છે એનો ભાવ છે. એ બંનેની સમજણ મેળવવાની છે. એટલે અહીંયા આગળ એ શું કહેવા માંગે છે કે તમે અને શ્રુતક જ્ઞાન જે છે એ તમારી જે લોકેશન છે, ફિઝિકલ લોકેશન, એની અપેક્ષાની, એની મર્યાદાની અંદરમાં જ થશે. બરાબર. અને એ દ્રવ્યની મર્યાદા શું, તો તમારી જેટલી પણ સમજણ છે, તમારી જેટલી ઇન્દ્રિયો કયો કે મન કયો કે આત્મા ઉપરના જે જ્ઞાનાવર્ણ દર્શનાવર્ણ કર્મનો જે પણ એનું સ્ટેટસ હોય, એ સ્ટેટસની સાથે તમે દ્રવ્ય રૂપે પ્રેઝન્ટ છો. તમે આ ક્ષેત્રમાં છો, એટલે તમે અત્યારના મેલબર્નમાં છો કે બ્લેકબર્નમાં છો કે માઉન્ટ વેવરલીમાં છો કે કોઈ પણ એરિયામાં છો. અને કાળ એટલે આ સમયે, જે સમયે તમે ઉપયોગ મૂક્યો એ સમયે તમારો ભાવ એ ઉપયોગમાં શું, અને જે વસ્તુ છે એનો ભાવ શું. તો તમે કોઈ વ્યક્તિને યાદ કર્યા તો તમારો ભાવ છે એ એ યાદ કરવાની અપેક્ષાએ હતું. એ જે ભાવ છે એ અસ્તિત્વનો, એ મોમેન્ટ, એની એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ સ્ટેટસ મતિ અને શ્રુત જ્ઞાનની બાઉન્ડ્રી છે. અવધિ જ્ઞાનમાં શું થાય છે કે અવધિ જ્ઞાનમાં તમને એ બાઉન્ડ્રીની બહારે પણ તમે જઈ શકો છો, કેમ કે ત્યાં તમારે સેન્સરી પરસેપ્શનની જરૂર નથી. That's why my પણ question એની કે તો અંદરમાં પણ કેમ કે મર્યાદા લીએ હુએ કીધું છે, because there is no કેમ boundary કે for એમાં અવધિ પણ જ્ઞાન. અલગ અલગ અપેક્ષા છે. એમાં પણ જેમ આપણે કહીએ કે ભાઈ કોઈ 10th સ્ટેન્ડર્ડ પાસ છે, કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ પાસ છે, કોઈ ગ્રેજ્યુએટ ડી ફિલ છે, જેમ અલગ અલગ સ્ટેટસ ઓફ જે ક્વોલિફિકેશન છે ને, એમ અવધિ જ્ઞાનમાં પણ ક્વોલિફિકેશન આવે. કે તમારું જેટલું અવધિ જ્ઞાનાવરણી કર્મ ઓછું હોય, એમ તમારો જે ઈ એરિયા છે એ મોટો મોટો થતો જાય. એટલે એને એટલા માટે કહેવા માંગે છે કે કેમ કે એની અંદરમાં બંને પોસિબિલિટીઝ છે, કે તમે બાઉન્ડ્રીની અંદરમાં પણ અવધિ જ્ઞાન કરી શકો છો અને બાઉન્ડ્રીની બારે પણ અવધિ જ્ઞાન કરી શકો છો. જેમ કે એક વ્યક્તિ છે તો એને જો અવધિ જ્ઞાન થાય તો એ કદાચ એના દેશનું કે એનાથી નજીકના દેશનું જ એને અવધિ જ્ઞાન થાય છે. એક છે એને આખી પૃથ્વીનું અવધિ જ્ઞાન થાય છે. એક છે એને જે મનુષ્યના ત્રણ જે 5 ખંડ છે એનું અવધિ જ્ઞાન થાય છે. એટલે ઈ બાઉન્ડ્રી એની જે છે એ બીજાની અપેક્ષાથી વધતી જાય છે, પણ એની તો બાઉન્ડ્રી સેટ જ છે કે એનાથી બારેનું અવધિ જ્ઞાન એને નહીં થાય. અને એમાં એને એમ લખ્યું છે હા. કે મર્યાદા લીએ હુએ રૂપી પદાર્થ કે સ્પષ્ટ જ્ઞાન. તો રૂપી પદાર્થ, વોટ ઇઝ રૂપી પદાર્થ? રૂપી એટલે જે પૂતગલ પદાર્થ હોય એ રૂપી, કેમ કે 6 ઉદ્ગલ. દ્રવ્યમાં એક પૂતગલ જ છે જેને રૂપ છે. બરાબર. જે ફિઝિકલ એક સ્ટેટ છે જે આપણને દેખાય છે, બાકી બધા તો અરૂપી જ છે.
એટલે અવધિ જ્ઞાનને અને મનપ્રેય જ્ઞાનની અંદરમાં ખાલી રૂપી પદાર્થ જ આપણે કે અવધિ જ્ઞાનમાં પણ રૂપી પદાર્થ જ આપણને દેખાય છે. मन पर्यायમાં રૂપી विषय લખ્યું છે, दूसरे के मन में स्थित હા, रूपी રૂપી विषय વિષય के અને स्पष्ट હા, ज्ञान होने को, तो ये रूपी विषय मतलब એટલે જે વિચાર આપણે જે એમ કહીએ ને કે મનો વર્ગણાના જે પૂતગલ છે, જેમ આપણે એક થોટ કહીએ हम्म તો થોટ પણ એક પૂતગલ છે, हम्म બરાબર? તો હવે એ જે થોટ છે એ જે પૂતગલ રૂપે છે, એ हम्म પૂતગલ રૂપે એ જાણી શકે છે ओके એવી રીતે. એટલે એને મનઃ પર્યાય જ્ઞાન કીધું છે કે જે મનની અંદરમાં સ્થિતિ છે, हम्म મનની અંદરમાં જે પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એનું પણ એને हम्म પ્રત્યક્ષ રૂપે જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે, बराबर વિધાઉટ એની નીડ ફોર સેન્સરી ઇન્વોલ્વમેન્ટ. हम्म એટલે આપણને એમાંથી ખાલી એ સમજવાનું છે, અહીંયા અપેક્ષા એ શું આપે છે કે આ બધા જે પોટેન્શિયાલિટી છે એ તમને બહારની બધી વસ્તુઓ સમજવા માટેની છે, બરાબર? हम्म પણ જો તમારી ધારણા જો મોક્ષ માર્ગની હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ તમને આકર્ષિત ન કરવી જોઈએ. જેમ કે મનપર્યાય જ્ઞાન છે, એ જે પણ સાધુ ભગવંતોને મનપર્યાય જ્ઞાન થાય એને हम्म એટલી બધી એનામાં એક સ્થિરતા આવી ગઈ હોય કે એ કોઈના પણ વિચાર છે તો પણ એની કેમ કે આપણે જો મનોપર્યાય જ્ઞાન કરીએ તો આ મારા માટે આવું વિચારે છે તો હવે એનો હું આમ કરી નાખું, ઓલા મારા हम्म માટે આવી રીતના વાત કરી રહ્યા છે તો એના માટે આપણે મૂવીઝમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું છે કે એવી એક સ્પેશિયલ પાવર આવી જાય કે બીજાના વિચારો જાણતા થઈ જાય તો એને રિસ્પોન્ડ કરે છે. हम्म જ્યારે અહીંયા આગળ જે સાધુ ભગવંતોને જેમને મનપ્રેય જ્ઞાન થાય ને એ નોન રિસ્પોન્સિવ થઈ જાય છે. ઉલટાનું એમના बराबर માટે એ વૈરાગ્યને પ્રબળ કરવાનો રસ્તો બને છે. ઇટ બીકમ્સ મોર ઓફ અ એમ્પાવરમેન્ટ ફોર રાગદ્વેષને છોડવા માટેનું. You are not meant to react on કે it. You જો just આ જ વિચારો આવા કે આ हम्म જે બધા વિચારો આવી રહ્યા છે દેટ ઇઝ શોઈંગ કે હું હજી સુધી મારું જે સ્વરૂપ છે એને હું નથી સમજી શક્યો અને હું આવા વિચારોમાં જ પડી રહેવા માંગુ છું. દેટ ઇઝ ધ ફ્લો ઇન માય જર્ની અહેડ. એ જ મોટા મોટું બેગ છે. बराबर કેમ કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે કેવળ જ્ઞાન છે એનામાં તો એને બધું જ દેખાવાનું છે. તો કેવળ જ્ઞાનમાં એને બધું દેખાવાનું છે તો એની લાયકાત ક્યારે આવશે એ કે જ્યારે એને પચાવી શકશે, જ્યારે એના ઉપર એને રિએક્શન કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી રહેતી કે કેમ કે એની જરૂર લાગતી પણ નથી કેમ કે તો એને પછી આ બધી વસ્તુમાં પડવાની ક્યાં એમ. તમારો અવાજ બહુ બ્રેક થાય છે સૌરભભાઈ. હા હા યસ ફ્રીઝ થઈ જાય છે. ફ્રીઝ થઈ ગયું લાગે છે. હા, હા હવે નેટવર્ક બરાબર છે. બેન્ડવિડ્થ લો. હમ ઓકે, એક જ મિનિટ. એક જ મિનિટ. હા. એની બેટર નાવ. હા હા ઓકે, હા ગુડ. હા, એટલે એમાં આપણને એ સમજવાનું છે કે આ બધી જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે કે આ અલગ અલગ કેટેગરીઝ ઓર સ્ટેપ્સ ઓફ જ્ઞાન, એની પાછળ આચાર્ય ભગવંતો કે તીર્થંકરો આપણને શું કહેવા માંગે છે કે આ બધી જે છે ને એ તમારી સ્ટ્રેન્થ છે, પણ એ સ્ટ્રેન્થ તમને જો તમારા પોતાના અનુભવ માટે, પોતાના અસ્તિત્વ માટે કે પોતાની અંદરમાં રહેલા જે આનંદનો સ્ત્રોત છે, જે ફાઉન્ટેન ઓફ બ્લિસ છે, એને જો એ ઓળખવામાં હેલ્પ ન કરી શકે તો ધીસ ઓલ વિલ બીકમ more of a hindrance in your process of transmigration.
એટલે મતિ જ્ઞાન થાય છે. તો મતિ જ્ઞાનમાંથી આપણને શું સમજવાનું છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોથી જે જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે એમાં એને જ્ઞાન કરવા વાળો હું છું. સેન્સરી ઓર્ગન્સમાં કેપેસિટી નથી કે મને એ જ્ઞાન કરાવી શકે, પણ જ્ઞાન કરવા વાળો હું છું. શ્રુત જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન કરવા વાળો હું છું. અવધિ જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન કરવા વાળો હું છું. મનપર્ય જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન કરવા વાળો હું છું. કેવલ જ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન કરવા વાળો હું છું. તો હું ઉપર જયારે ફોકસ આવશે ત્યારે એ જે જ્ઞાનના જે વિષય આવી રહ્યા છે એ બધા ઓબ્સ્ક્યોર થઈ જશે એવી રીતે. અચ્છા, હવે એક મેં કોણ હું કરીને જે પાઠ છે ને એમાં એક શબ્દ આવે છે સ્વસંવેદ્ય તત્વ है. હું તમને सेंटेंस कहूँ. हाँ हाँ. मैं के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है वह आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है, अनुभव गम्य है, बहिर्लक्षी दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह स्वसंवेद्य तत्व है, तब उसे मानसिक विकल्पों में नहीं बांधा जा सकता है. तो स्वसंवेद्य मैंने क्या मीनिंग? सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ सेल्फ एक्सपीरियंसिंग. સંવેદન એટલે આપણને જે એક્સપિરિયન્સ થાય છે એટલે એમ કે હા આત્મા જે છે એને કોઈ ડેફિનિશનની જરૂર નથી, કોઈ ડિસ્ક્રિપ્શનની જરૂર નથી, કોઈ એક્ઝામિનેશનની જરૂર નથી. એ આપણને આપણા એક્સપિરિયન્સમાં આવી રહ્યું છે કે આપણે આત્મા સ્વરૂપ છીએ. પણ આપણું એ એક્સપિરિયન્સ બહુ જ ગ્રોસ છે, એટલે એટલું બધું સુપરફિશિયલ છે કે એ આપણને સમજાય એ પહેલા જ એ મોમેન્ટ પાસ થઈ ગઈ હોય. We're not able to hold on to that moment. Awareness When નથી. realize that we experienced it, we move on so fast. We are more focused on બરાબર. external affairs. એટલે એના હિસાબે આપણે સેન્સરી ડિપેન્ડન્સી ઉપર આવી ગયા છે. એટલે આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આ આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ હશે કે નહીં એમ. અને છેલ્લું છે એક આ જો કે હજી એક બીજો સવાલ બી છે. પાર્ટ 7 છે ને મુક્તિકા માર્ગ, એમાં છે પરિણમન. હવે મેં પરિણમનનો ક્યાંક તો અર્થ કાઢ્યો પણ મને સમજાયો નહીં. એક મિનિટ, પરિણમન ક્યાં લખ્યું? ટ્રાન્સફોર્મેશન. અચ્છા. ટ્રાન્સફોર્મેશન છે ને, મેં અહીંયા જ લખ્યું પરિણમન. ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે મને બીજો વર્ડ મળ્યો. કાં તો મેનિફેસ્ટેશન કહી શકાય. પરિણામ ઇઝ મોડિફિકેશન ઓર ટ્રાન્સફોર્મેશન, ઇઝન્ટ ઇટ? એટલે પરિણામ છે ને, ઇઝ ધ સેમ. પરિણામ છે ઇટ્સ અ વર્બ અને પરિણમન જે છે ઇટ્સ અ નાઉન. નાઉન, ઓકે. એટલે આપણે જેમ કહીએ કે ભાઈ મેં કોઈક એક વિચાર આવ્યો કે મારે આમ કરવું છે, એટલે મેં એના માટે થઈને એ વિચાર આવ્યો એ મારું પરિણામ, અને એ વિચારને મેં જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કર્યું એ મારું પરિણમન. there is a change from state A to state B. बिकॉज આમાં એવું છે, છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है अर्थात दुख मेटना है तो रत्नत्रय रूप परिणमन करना चाहिए. એટલે આપણું જે ટ્રાન્સફોર્મેશન થતું હોય એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર રૂપી થવું જોઈએ એમ. એટલે જેમ કે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આપણે એક વ્યવહારનું ઉદાહરણ લઈએ કે આપણે ક્યાંક કોઈક કોઈક સ્પોર્ટ્સની ઇવેન્ટમાં ગયા કે ક્યાંક કોઈક ટ્રાવેલ ઇવેન્ટમાં ગયા, તો આપણે હજુ પણ આપણી જાતને એ પોઝિશનની સાથે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ કે સ્પોર્ટ ઇવેન્ટમાં ગયા તો એમ કીધું કે ભાઈ અહીંયા તમારી સીટ નંબર આ છે, તમારે અહીંયા બેસવાનું છે. એટલે તમે આખા ઇવેન્ટની અંદરમાં તમારી જાતને એ સીટની સાથે જ એસોસિએટ કરી રહ્યા છો. બરાબર? હવે તમે શું કહો છો કે ભાઈ જો હું આ સીટને હું એસોસિએટ નહીં કરું તો હું આ બધી જ વસ્તુમાં ખોવાઈ જઈશ. તો હું પણ મારી જાતને નહીં ક્યાંક ગોતી શકું કે મારી સાથે આવેલા કોઈ પણ મારી સાથે મને ગોતી નહીં શકે. તો એ જે ગમાવાની જે ડર છે એ ગમાવાના ડરને દૂર કરવા માટે થઈને
આપણે એ જે એસોસિએટેડ આઈડેન્ટિટી છે, ભલે એ પાસ હોય કે સીટ નંબર હોય કે ટિકિટ હોય, કે એને આપણે પકડી રાખીએ છીએ કે આ આપણી બરાબર આઈડેન્ટિટી છે. કે આઈ એમ અ વાઇફ, આઈ એમ ધ મધર, આઈ એમ એવી રીતના અહીંયા પણ આપણે એક ઇનસિક્યુરિટી છે કે હું આ સંસારમાં ખોવાઈ જઈશ, એ ન ખોવા માટે થઈને મેં આ બધા ટાઇટલ્સ ઉભા કર્યા છે. બરાબર. તો હવે એનાથી એક સ્ટેપ ઉપર વધીએ કે હું આ સંસારમાં ખોવાઈ રહ્યો છું, અને એમાંથી જો મારે મારી જાતને બચાવવું હોય તો મારે એ નક્કી કરવું પડશે કે સાચે સાચ હું કોણ છું. જો હું આ ટાઇટલ્સની બી ઉપર છું તો જે છું એને હું ઓળખવાની કોશિશ કરું. એટલે જે પરિણમન છે એ ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તરફ જાય છે, ઇવોલ્યુશન તરફ જાય છે. અને એ જ્યારે એવોલ્યુશન એ સ્ટેજ ઉપર આવશે કે જ્યાં આ બધા જ જે ઇશ્યુઝ છે, જે બધાને હું પકડીને રાખું છું, જેને હું પરિગ્રહ કહું છું, એ બધા જ છૂટી જશે. અને એ છૂટે તો મારું સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર ઊભું થાય. એટલે એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે એ ઊભું થશે તો આ બધા પરિગ્રહ છૂટી જશે, અને પરિગ્રહ છૂટી જશે તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર ઊભું થશે. એટલે બોથ ઓફ ધેમ આર સેમ, ટુ સાઇડ્સ ઓફ સેમ કોઈન. અલ્ટિમેટ પરિણમન એ જ થવાનું છે કે મેં મારી જાતને ઓળખી લીધી, એટલે હવે હું ક્યાંય ખોવાઈ નહીં શકું. એક આમાં છે ને હમણાં અમે પાનબાઈના એક ગંગા સતી ને પાનબાઈના ભજન આવે છે, એમાં હા એ બહુ પોપ્યુલર છે એનું, જે વીજળીના ચમકારે હા મોતીડા હા ફોરવીલો. તો ઇટ્સ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ થિંગ કે અહીંયા પણ ઘણી વાર આપણે સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ તમે સોયની અંદરમાં દોરો પરવેલો હશે તો એ સોય ક્યાંય ખોવાવાની નથી. એટલે એ છે કે આત્મા જયારે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી ગયો તો એની અંદરમાં જે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપી દોરો પરવાઈ ગયો તો હવે એ આત્મા ક્યાંય પણ ખોવાશે નહીં. એ અપેક્ષાથી કે પરિણમન તમારું રત્નત્રય રૂપી થવું જોઈએ એમ. સમ્યક દર્શન રૂપી દોરો. હા, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર રૂપી દોરો, અને આત્મા એ સોય. તો એ આત્મા જયારે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર રૂપી થઈ જશે તો એ સંસારમાં ક્યાંય પણ ખોવાશે નહીં. મને સોરી હા કલ્પેશભાઈ, ના ના વાંધો નહીં, આમ પણ આઈ ડોન્ટ હેવ ક્વેશ્ચન્સ એઝ હજી સચ. થોડા સવાલ છે. આપણે હા હા અમે છે ને મેમ હમણાં જે 2 દિવસથી કરાવે છે ને અઠવાડિયે કર્મ ઉપર, હમ તો કર્મને લાગીને જે 4 છે, કર્મની પ્રકૃતિ, પ્રદેશ, અનુયોગ ને સ્થિતિ, એ મને નથી અનુભાગ અને સ્થિતિ. સોરી અનુભાગ, અનુયોગ પણ નોટ કહે છે ને, અનુયોગ, અનુયોગ બી કહે છે ને, અનુભાગ બી કહે છે. અનુભાગ. હા હા, એટલે એમને ઉદાહરણથી સમજાવ્યું હશે, બટ આઈ ટ્રાય માય વે. હા મને નહીં સમજાયું. એટલે આમાં શું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ કર્મનું આત્માની સાથે બંધન થવાનું હોય કે બંધન થતું હોય તો એને આપણે કઈ અપેક્ષાથી સમજીએ કે જેથી કરીને આપણને એક કર્મના જે પણ ફળ હશે એના ઉપર આપણને આપણી જે ક્લેરિટી છે એ વધતી જાય, અને બીજું કે કર્મ આપણે ન બાંધીએ એના માટે જે સંવર ભાવના છે, સંવર કરવાનો છે, એ આપણું વધારે સમજણપૂર્વક થાય. એટલે એમ કીધું કે જેમ કે હવે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ રોટલી બાંધવી છે તો રોટલી બનાવવા માટે છે ને તમારે લોટ છે, પાણી છે, તેલ છે, જે બી હોય એના બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ હોય એને તમે ભેગા કરો તો તમારે એ બાઇન્ડિંગ થાય અને ડવ થશે તો એમાંથી રોટલી બનશે. તો એ જો કોઈકને એમને તમે રોટલી બતાવી દીધી તો એને એ નહીં ખબર પડે કે ભાઈ આ કેવી રીતના બની છે. એમ તમે એમ કીધું કે ભાઈ કર્મ બંધાણા છે ને એટલે તમે હેરાન થાવ છો. તમે દુઃખી એટલા માટે થાવ છો કે તમે જે કર્મ બંધાયા છે એનો જે ઉદય થઈ રહ્યો છે એના હિસાબે તમને જે બધા સંયોગો બની રહ્યા છે એમાં તમે દુઃખી થાવ છો. તો એને ઈ નહીં સમજાય કે ભાઈ આ કર્મ છે શું ને ક્યાંથી આવ્યા. હવે તમે એને પ્રોસેસથી સમજાવો કે આ રીતના આખા સંસારમાં આવી રીતના કાર્બન વર્ગણાના પૂતગલ હોય, અને કાર્બન વર્ગના પૂતગલ છે એને તમે જયારે આકર્ષો છો, તમે એ પૂતગલોને નથી આકર્ષતા પણ તમે એવો કોઈક વિચાર કર્યો જેમાં તમે કોઈક એક
એક જે ઓબ્જેક્ટ છે કે એના ઉપર તમને વિચારણા થઈ, તો એમાં તમને રાગ દ્વેષ મોહ જે બી થયો એ ઓબ્જેક્ટ ઉપર, એના હિસાબે એ ટાઈપની કાર્બન વર્ગણાની જે પણ સિચ્યુએશન હોય એ તમારી સાથે આવીને બંધાય. તો હવે કાર્બન વર્ગણાના જે પૂતગલ છે એ તો સૂક્ષ્મ છે, એટલે એ તો એક એવી રીતના ન બંધાઈ શકે, એટલે એમને જે બંધાવાની પરિસ્થિતિ છે એ કર્મ રૂપે થાય છે. તે તો જેમ કે હવે કાર્બન વર્ગણાને આપણે $1 કહીએ તો કર્મનો જે જથ્થો હશે એ 10,000 એવા રૂપિયા થશે, ડોલર થશે. તો એટલે એટલો મોટો જથ્થો હોય તો એ એક સાથે આત્માના પ્રદેશો સાથે જોડાય છે. તો હવે જોડાય છે કઈ રીતના, તો કે એમાં 4 એના અલગ અલગ સ્ટેપ્સ છે. તો પહેલું છે કે એ પ્રદેશથી બંધ થાય છે. એટલે પ્રદેશ એટલે શું, તો કે કર્મનો જે પ્રદેશ છે, જેની જે સ્પેસની અંદરમાં કર્મ એક્ઝિસ્ટ થઈ રહ્યું છે એ ટાઈમે, નોટ કાર્બન વર્ગણા, કર્મ. અને એ જ ટાઈમે એ આત્મા પ્રદેશનો જે સ્પેસ છે જેના નજીકમાં એ છે, એની સાથે જ્યારે જોડાય છે ત્યારે ફ્રોમ ધ સ્પેશિયલ પર્સપેક્ટિવ, એ સ્પેસની અપેક્ષાથી જે કહીએ એ એનો પ્રદેશ બંધ થયો. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આખા શરીરમાં એક આંખમાં જ કંઈક કણી ખૂંચી ગઈ, તો આપણે એમ કહીએ ભાઈ આ જે પણ વસ્તુ ખૂંચી આંખમાં ખૂંચી, તો આખા શરીરમાં ખાલી આંખમાં જ ખૂંચી છે. એટલે એનો જે પ્રદેશની સાથેનો જે સંપર્ક છે એ ખાલી આંખ પૂરતો જ રહ્યો છે. એવી રીતના આ કર્મ છે એ કર્મ એ જે આત્માના જે પ્રદેશમાં જે સ્થાને એ બંધાઈ રહ્યું છે ત્યાં એને પ્રદેશની અપેક્ષા કે. પછી પ્રકૃતિ કીધી. પ્રકૃતિ એટલે શું, તો કે નેચર ઓફ ધેટ કર્મ. હવે કર્મની અંદરમાં ક્યાંય એવું લખેલું નથી કે આ જે કર્મ જે છે એ કર્મ જ્ઞાનનું બંધારણ કરશે, કે આ કર્મ છે એ દર્શનનું બંધ કરશે, કે આ કર્મ છે એ મોહનો બંધ કરશે. એવું ક્યાંય કર્મના પૂતગલો ઉપર ક્યાંય એવું લખેલું નથી. પણ એનું જ્યારે ફ્રુશન થાય, જ્યારે એ ઉદયમાં આવે, ત્યારે એ જે જાતની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય એના ઉપરથી એની પ્રકૃતિ આપણે સમજી શકીએ છીએ. જેમ કે ઈ કર્મનો ઉદય થાય અને આપણને કંઈ સમજાવવાનું હોય બંધ થવા માંડે કે ઓછું સમજાવવા માંડે, ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે આ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનો ઉદય છે. પછી એમ કે ભાઈ અત્યારે મને માથું દુખે છે કે શરીર તૂટે છે, એટલે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ વેદનીય અસાતા વેદનીય કર્મનો ઉદય છે. એટલે એ રીતના આપણે એની પ્રકૃતિ નક્કી કરીએ છીએ. પછી છે અનુભાગ. એટલે અનુભાગને સિમ્પલી ટ્રાન્સલેટ કરીએ તો ઇન્ટેન્સિટી, કે કેટલા ઇન્ટેન્સિટીથી એ બંધાયેલો છે. બરાબર. અને સ્થિતિ એટલે એની સ્ટેટસ, કેટલો ટાઈમ સુધી એ રહેશે બંધાયેલું, ડ્યુરેશન. હા, તો એ જે ડ્યુરેશન છે એ પણ એટલે આની અંદરમાં આપણને સમજવાનું એ છે કે પ્રકૃતિ અને પ્રદેશ એ બે નું જે ઇફેક્ટ છે, ઇમ્પેક્ટ છે આપણી જર્નીમાં, એ મિનિમલ છે. એમ કહો તો 100% માંથી 1% ઇફેક્ટ છે ને એ પ્રદેશ અને પ્રકૃતિનો છે. 99% જે છે એ અનુભાગ અને સ્થિતિનો છે. તો અનુભાગ જેટલો તમારો ઘાટો હશે, જેટલો ઇન્ટેન્સ હશે, એટલો એ કર્મ લાંબુ બી ટકશે, અને લાંબુ કદાચ ન બી ટકે તો પણ એની જે તમારા ઉપર ઇફેક્ટ આવશે એ એટલી જ વધારે આવશે. એવી રીતે. એટલે તમે દાખલા તરીકે આપણે જેમ કહીએ ને કે ભાઈ કેમેરાનો શટર ધીમે 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 બંધ થાય ને ધીમે ધીમે ખુલે, તો એવરી માઇક્રો સેકન્ડમાં એ જેટલું બંધ થાય છે એટલું જે ઇમેજ છે એનું રેઝ એના શટરમાંથી એની સ્ક્રીન ઉપર પડી રહ્યું છે. અને જેટલા પ્રમાણમાં એ ઉપર થતું જશે એમ ઓલી ક્લેરિટી વધતી જશે. એમ જે અનુભાગ છે એ પણ સ્લો પ્રોસેસ છે. એક સમયની અંદરમાં અનુભાગ ચાલુ થયો, પછી બીજા સમય, ત્રીજા સમય, ચોથા સમય.
હવે તમે જેટલા એની અંદરમાં ઓતપ્રોત થશો એ ઓબ્જેક્ટની અંદરમાં, એટલો તમારો અનુભાગ છે એ વધારે ને વધારે કન્ડેન્સ થવા માંડશે. અને જેટલો વધારે ને વધારે કન્ડેન્સ થતો જશે, એટલો એ વધારે ને વધારે ત્યાં આગળ એની ડ્યુરેશન પણ વધશે. લાઈક તમને કહું કે ભાઈ આપણે કોઈક મૂવી જોવા ગયા અને મૂવી જોતા કોઈક બહુ ગમતો એવો સીન આવ્યો, તો એ સીન તો પડદા ઉપર પ્રેક્ટિકલી 20 સેકન્ડ્સથી વધારે ટકતો નથી. પણ એ સીન જોતા જોતા તમે એ 20 સેકન્ડ્સને સ્ટ્રેચ કરી અને 30 સેકન્ડ સુધી લઈ ગયા, તો તમે એ 30 સેકન્ડ સુધીની ઇન્ટેન્સિટીનું અને ડ્યુરેશનનું કર્મ બાંધ્યું. હવે એ મૂવી ત્યાં પૂરું થઈ ગયું, તમે ત્યાંથી ઊભા થઈને થિયેટર હોલમાંથી બહાર બી આવી ગયા, પણ એ સીન જે છે એ તમારી સાથે ને સાથે તમારી સ્મૃતિમાં આવી રહ્યું છે, અને યુ આર રિસ્પોન્ડિંગ ટુ ઇટ. એટલે તમારી ઇન્ટેન્સિટી એટલી જ વધારે ને વધારે થશે, કેમ કે એમાં તમારા કર્મનું બંધન ચાલુ છે. બરાબર. હવે તમે એ 20 સેકન્ડનું જે સીન છે એને તમે 21st સેકન્ડમાં તમે બ્લોક કરી દીધું કે હવે તમારું ધ્યાન બીજા સીન ઉપર ગયું, તો તમારી જે ઇન્ટેન્સિટી છે એ પણ બહુ ઓછી રહેશે અને એનું ડ્યુરેશન પણ ઓછું રહેશે. એમ આપણે જેમ કહીએ ને કે મેમરીઝ આર ધ બિગેસ્ટ ઇશ્યુઝ વેન વી ટોક અબાઉટ કર્મબંધન, કે આપણે ઘટના તો આજે ભૂતકાળમાં બની ગઈ છે, પણ એનું આપણને મેમરી આજે પણ છે, અને વી ટેન્ડ ટુ લીવ થ્રુ ધેટ મેમરી. હવે જેટલી વાર મેમરીને રિકોલ કરશું, એટલી વાર આપણે ફરી પાછા એ જાતના કર્મોનું બંધન ચાલુ કરશું. ફરી પાછો એનો અનુભાગ, એની ઇન્ટેન્સિટી વધતી જ જશે, અને ફરી પાછું એનું ડ્યુરેશન છે એ પણ વધતું જશે. I take it this way that the neural paths that are in our brain gets more stronger, more deeper, because we keep reliving the same Reliving the thing thing. over and over again. અને આ આપણે સમજવા માટે થઈને એમ કહી શકીએ છીએ કે વી ટોક અબાઉટ ન્યુરલ થિંગ્સ, પણ આ જ પોસિબિલિટી એક ઇન્દ્રિયના જીવમાંથી લઈને પંચેન્દ્રિયના જીવ સુધી પણ છે. ઓલ્ધો વી ડોન્ટ ટોક અબાઉટ મેમરી ઇન લેસર બીઇંગ્સ, પણ અનુભવ તો બધાનો જ છે. બરાબર. સ્પર્શેન્દ્રિય છે, જ્યાં સુધી એક પણ સેન્સરી ઓર્ગન છે ત્યાં સુધી તમારો અનુભવ તો રહેવાનો જ છે, અને એ અનુભવ જે છે એ ભાવ મનની અંદરમાં સ્થિર છે. તો એ ભાવ મન છે, એ ભાવ મન તો નિગોદના જીવને પણ છે, અને ભાવ મન તો સિદ્ધના જીવને પણ છે. ભાવ મન ન કહી શકાય ને, પણ એમ કે ભાવ મનની અપેક્ષાએ પંચેન્દ્રિયના જીવને પણ ભાવ મન તો છે. ખાલી જે એનું દ્રવ્ય મન જે છે, જે સેન્સરી ઓર્ગન્સ માંથી રિસેપ્શન લઈ રહ્યું છે, એમાં ડિપેન્ડિંગ ઓન એક્ટિવ સેન્સરી ઓર્ગન્સ કેટલું રિસેપ્શન થઈ રહ્યું છે એ. પણ ભાવ મનમાં તો એને એ સંસ્કાર પડેલા છે, એ એના એક્સપિરિયન્સમાં પડેલું છે. એટલે જ આપણે ઇફ વી ગો ઇન ટુ મોર સાયન્ટિફિક એક્સપિરિયન્સીસ એન્ડ એક્સપેરિમેન્ટેશન, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે કોઈ પણ ઝાડ પાન છે એના પણ નજીકમાં કંઈ પણ એવી વસ્તુ આવે કે જેનાથી એના જીવને જોખમ થવાનું છે, તો એ પણ એને રિએક્ટ કરે છે, એનું પણ Yeah, it વાઇબ્રેશન curls વધી રહ્યું itself. છે. Yeah. તો એ શું કામ થાય છે? કારણ કે એને પાછળમાં પણ એને મૃત્યુ થયેલું છે એનો અનુભવ છે, પાછળમાં પણ એને દુઃખ થયેલું છે એનો અનુભવ છે, અને દેટ વોઝ રિકોલ્ડ એટ દેટ મોમેન્ટ. તો નહીં તો રિસ્પોન્સ જ ના આવે. બરાબર. જો કંઈક નવી જ ઘટના બનતી હોય તો તમે રિસ્પોન્ડ જ નથી કરી શકવાના. પણ એ જે તમારી મેમરી છે, એ મેમરી તમારી એક્સપિરિયન્સના લેવલ ઉપર તમારા ભાવ મનમાં સ્થિર થઈ ગઈ છે. એટલે યુ આર ગોઈંગ ટુ રિસ્પોન્ડ ટુ વેધર યુ હેવ વન સેન્સ ઓર ફાઈવ સેન્સ, તમે રિસ્પોન્ડ કરશો એને. ફાઈવ સેન્સ ઓર્ગેનિઝમ્સમાં ખાસ કરીને મનુષ્યમાં એ શક્યતા છે કે એને સમજી અને એમાં એ નવો ઉમેરો ન કરે, એડિશન ન કરે, તો એ જે ચેઇન છે એને ત્યાં બ્લોક કરી દે છે. એટલા માટે આપણને આ બધી ટેકનિકલ વસ્તુઓ બતાવી છે. ઇફેક્ટિવલી ટેકનિક જાણવી જરૂરી છે, પણ ટેકનિકની અંદરમાં જો આપણે અટકી જશું કે તો પછી મારાથી તો કોઈ દિવસ મોક્ષનો રસ્તો પકડાશે જ નહીં, કેમ કે મારી તો મેમરી ઘણી બધી છે.
મને તો ઘણા બધા ઇશ્યુઝ બી આવી રહ્યા છે, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ બી આવી રહ્યા છે, ઘણા બધાની સાથે મારા અણબણ પણ છે. તો મારું તો શું થઈ શકે? તો તમે એ ટેકનિકમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા અને એમાં તમે અટકી ગયા, તો તમે એની બારેનો શું છે ને એને તમે જોઈ નથી શકતા. તો ટેકનિક સમજવી જરૂરી છે, કેમ કે એ સમજાશે તો તમે એનો ઈલાજ કરી શકશો, એને તમે રોકી શકશો. So go beyond the process. બિયોન્ડ ધ પ્રોસેસ. એટલે એમ કે છે કે જેમ તમે આગળ ભણશો ને આની અંદરમાં, કે તમારે કરવાનું કંઈ જ નથી. ઇન યોર ડે ટુ ડે લાઈફ યુ ઓનલી હેવ ટુ બીકમ aware of who you are, aware of where you are, aware of how you are, aware of what you are. એટલે એ જે અવેરનેસ છે એ ધીરે ધીરે ડેવલપ થશે. પહેલા આપણે અવેરનેસ છે એ બીજાની દ્રષ્ટિએ કરીએ છીએ, પછી જેમ જેમ એમાં પહેલી અવેરનેસ જે આપણી આવે છે એ આપણને રિસ્પોન્સ મિકેનિઝમને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે છે, કે મારે આ સિચ્યુએશનમાં શું રિસ્પોન્ડ કરવો. જેમ કે આપણે ગાડી ડ્રાઈવ કરતા હોઈએ તો પહેલા આપણે રોડનું માર્કિંગ કરતા હોય કે રોડ ઉપર ટ્રાફિક કેવો છે, કોઈ ક્રોસ તો નથી કરી રહ્યું, ક્યાંય તો કોઈ મારી સાથે ભટકાશે તો નહીં. પછી જેમ જેમ એ અવેરનેસ વધતી જાય એમ એમ તમારી અવેરનેસ તમારા ઉપર આવે કે હું અત્યારના કાર ડ્રાઈવ કરી રહ્યો છું કે કરી રહી છું. તો એ ટાઈમે મારે એ કારમાં મારી અવેરનેસ જાળવવાની છે કે બીજા બધા ગમે એ રીતના ચલાવતા હશે, પણ મારે મારી રીતના જે રીતના હોવું જોઈએ એ રીતના ચલાવવાનું છે. તો તમારી જે અવેરનેસ થશે એટલે યુ વિલ બીકમ મોર ફોકસ્ડ ઓન યોર ડ્રાઇવિંગ. એના પછી કદાચ આજુબાજુમાંથી કોઈ લોકો વાતો બી કરતા હશે, યુ માઇટ બી લિસનિંગ ટુ મ્યુઝિક, but you may not put your focus into that. Your focus will be in the awareness that you are driving at that moment. જય જિનેન્દ્ર. નમ્રતાજી. હેલો. Sorry, નમ્રતાજી. I think she came and left. सर नो नो नम्रता नो जी। सर, ऐसे ही मैंने ऑन करा, ऐसे देखूं क्लास है क्या, तो देखा क्लास चल रहा है और मेरा 3 क्लास ऐसे ही मिस हुआ है सर. स्टार्टिंग में नहीं रहता, 3-8 ऐसे भी डाल के देखी भी हूँ, नहीं था तो फिर आई थॉट नहीं है. अभी अब दूसरा कुछ पढ़ रही थी तो ऐसे देखूं क्लास है क्या करके. जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र जय एवरीबॉडी. जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र नम्रता जी. कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, परीक्षा कैसे जा रही है? Bad, I got 43 in the second paper. अब बैड क्या है इसमें? 43 तो अच्छा ही है. डिस्टिंक्शन, हाई 47 था. डिस्टिंक्शन. देखिए First, आप तो अपने आप को आंख बंद करके ये सोचिए कि मैं मोक्ष मार्ग के कितने और नजदीक पहुंची हूँ. yes, yes. ये परीक्षा तो कुछ नहीं है. जो परीक्षा है वो तो हाँ, तब होगी जब हम उसमें, और मेरे गुरुजी हम हमेशा मुझे ये कहते हैं कि हमको ये सब करना क्यों है, क्योंकि नहीं ये हमको काम कब आएगा, जब हमारा अंतिम समय इस भव का होगा, जब उस समय में हमारा मन इतना व्याकुल हो जाएगा, हम ये परिस्थिति को, ये संसार को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और हमारा हमारा छूटना निश्चित है. उस समय में मन इतना व्याकुल होगा कि हम गलत सलत विचार करेंगे. तब अगर हमको ये पता है कि मुझे तो अंतरात्मा बनना है, अंतरप्पा बनना है, अंतरात्मा बनना है, तो जो है वो सारी उलझनों से हमारा मन हट करके यहाँ पर आएगा. तो उसके चिंतन के लिए हमको ये सब दिया गया है. नहीं, यस सर. तो दिस एग्जाम मतलब अगर क्लोज्ड बुक एग्जाम रहता ना तो सच्ची बोल रहे वी वुड आंसर कर देते. ओपन बुक के कारण ना घड़ी घड़ी वो पेजेस वापस रिपीट कर करके पढ़े हैं. लेकिन आप But सोचिए that's कि the उनका, purpose. हाँ, That's the purpose. Yeah, उनका भी yes. यही In पर्पस spite है. of that, I made 7 mistakes. होगा. फर्स्ट में तो 47 आया, सेकंड में 43 आया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपको एक्चुअली पता एक तो चला क्वेश्चन, ना कि आपकी मिस्टेक हो रही है. हाँ, एक क्वेश्चन था वो जम्बूद्वीप वो मतलब सेंटर में है. हाँ हाँ हाँ. हाँ, उसमें है ना हाँ. पहले मैंने ट्रू लिखा, फिर वापस वो लेसन पढ़ी तो देखा कि है ना वो
मेरू पर्वत है बीच में, हम्म तो फिर उसको फॉल्स कर दिया। ऐसे इतना इजी आंसर, इतना हाँ, इजी वो क्वेश्चन जम्बू छोड़ के द्वीप रहेगा। के सेंटर में मेरू पर्वत है, लेकिन जम्बू द्वीप खुद तो मध्य सेंटर में ही है। मध्य में है ना। हाँ, हाँ मध्यलोक के वही। मैंने मध्य भी में। चेक किया था। हम्म हाँ, वो वापस बाद में फिर फॉल्स कर दिया। कोई ऐसा नहीं, मैंने भी किया है नम्रता जी, जो सही था आंसर वो दिया था पहले, फिर इसको चेंज किया और गलत हो गया। होता है, होता है। होता पर है उससे बिल्कुल। उससे मुझे एक सीख मिली, मेरे से दो तीन इस बार हुए दूसरे पेपर में, कि एकदम ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम्म हाँ, कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और मैं actually इसीलिए आपको इतना टाइम भी दिया गया है ना, कि आप बहुत मेरा टाइम। पूरे मेरा दिन तो वो भर में कर मोटी दो। बुद्धि का रोंग हुआ। वो मोटी बुद्धि जो है, वो भाव से, भाव पर स्त्री गमन है, वेश्या गमन है। हम्म तो मैंने वो पहला भाव वर्ड पढ़ा, लेकिन वो द्रव्य नहीं पढ़ा। वो हम्म क्वेश्चन में था हाँ, द्रव्य से है, द्रव्य। तो हम्म हाँ, मेरा तो रोंग रॉन्ग हो है। गया। हम्म हाँ, और एक था ये, अ, मतलब पहले सब है ना वो लाइन वाइज, जैसे गेहूं चावल और ये सब का हाँ लिखन था हाँ, ना that was शाकाहारी में। very tricky. Yeah. लास्ट जिमीकंद को मैंने है ना टिक कर दिया, वो जिमीकंद अपने आता ही नहीं है। हाँ, हाँ हाँ। जिमिकन तो आना ही नहीं चाहिए। हम्म Correct. मैं वो ना लाइन उस वाइज सवाल को उसको। मैंने कम से कम 6 बार पढ़ा था। मैंने क्योंकि भी. इतना Yeah. कंफ्यूजिंग हो रहा था। Yeah. That's right. ट्रिकी है, वो बहुत ट्रिकी है। नहीं, उस हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि हाउ मच वी आर बुक में हमेशा कॉन्सेंट्रेटिंग। गेहूं आगे लिखा हुआ था, और इसमें गेहूं हाँ. सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में आगे था, जिसमें जमीकंद भी था। Yes. You are right. Just because of that, I read it so many times. Me कि too. am I getting it right? Am I getting it right? आई तो रेड द होल बुक, बट वो Hmm. हाँ, लास्ट में फिर पता नहीं। और बाकी अब भूल गई, दो तीन चीज याद रह गया। ऐसे पूछूंगी मैं कि है ना वो तो मेरू पर्वत है ना, हम्म तो वो कैसे रॉन्ग हो गया करके। आपका पर प्रश्न, देखिए, लेकिन ये। ऐसा है नम्रता जी, मुझे किसी ने कहा था कि व्हाट यू गेट रॉन्ग यू विल नेवर फॉरगेट। हम्म सही सही बात है, है. सच सही बात है, बात है. सच बात है। सही है सर, सही Hmm. है। और बस उसको पता एक्सेप्ट करना भी है ना। यस यस, हम्म हम्म एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू ऑल द लेसन्स इन अ वेरी टैक्टफुल वे सर। हम्म धीरे धीरे जो अभी है ना, ऐसी हैबिट डालिएगा कि हाँ हाँ इनको इनको एक रोल प्ले कर दीजिए आप। हाँ हाँ कि जैसे आपने कहा कि मन में ऐसे एक पिक्चराइजेशन होना चाहिए कि अगर जम्बू द्वीप है, या जैसे ये सप्त व्यसन है, और हमारी जो फिलोसॉफिकल जो चीजें बताई गई है ना, उनमें से सभी चीजें ऐसी है जिनको हम पिक्चराइज कर सकते हैं, जो हमारी हैबिट के साथ में है। जैसे ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व है, तो ये घटना की, इसको मिथ्यात्व के रूप में लूंगी या नहीं लूंगी, इनको मैं ग्रहित बताऊंगी या नहीं बताऊंगी। जैसे आप शॉप में जाते हैं, तो शॉप में दरवाजा हाँ खोलते वो हैं, तो हम्म, ये इसको मैं मिथ्यात्व कहूंगी या नहीं कहूंगी। तो अब हमको प्रैक्टिकल जो मिथ्यात्व है वो समझ में आने लगे, कि जैसे ताला अगर राइट साइड में खुलता है और मैं उसको लेफ्ट साइड में खोलने की कोशिश करूं, तो मिथ्या हुआ, क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं। तो जब हाँ उसको राइट साइड में नहीं खोलती हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि अच्छा, ये तो मेरा अग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि मेरी दिमाग में ऐसी एक बैठ धारणा गई है है। ऐसी बात, कि इसको इसी तरह से खोलना है। मैं सोचती भी नहीं हूँ और ऐसे घुमा देती हूँ। तो हम्म, वैसे वैसे आप अपनी हर दिनचर्या की हर एक एक्टिविटी के साथ में इनको जोड़ोगे ना, तो आपके मन में वो एक पिक्चराइजेशन होगा कि अच्छा, ये होता है तो ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्योंकि कहीं पर भी हमको भगवान ये नहीं कहते हैं कि आपको ये सब अलग से बैठ करके सोचना है। ये आपका जीवन ही ऐसा होना चाहिए Hmm. कि आप जीवन में उसको सोचिए कि मैं इस तरह से करती हूँ, तो अगर मेरा पर्पस सर्व नहीं हो रहा है तो ये मिथ्यात्व है। पर्पस सर्व हो रहा है तो वो सम्यक्त्व है। और जब उसको मैं धीरे 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 वो पर्पस को मैं फिर से इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि ये पर्पस
क्यों, ये पर्पस क्यों, तो धीरे धीरे उसमें से और खुलासा आएगा कि अच्छा इससे भी इम्पोर्टेंट और एक पर्पस है, इससे भी इम्पोर्टेंट और एक पर्पस है। क्योंकि कोई भी पर्पस अगर मुझे खुशी नहीं देता है तो वो पर्पस मेरे लिए बेकार है। तो अभी जैसे मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो क्या इससे मुझे खुशी मिल रही है? तो अगर खुशी मिल रही है तो मेरा पर्पस सर्व हो रहा है। लेकिन अगर मुझे ये हो रहा है कि मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, ये नहीं करूंगा तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, ये नहीं करूंगा तो भगवान की दृष्टि में मेरा कोई सम्मान नहीं होगा, ये नहीं करूंगा तो लोग मुझे जैन नहीं बुलाएंगे, ये नहीं करूंगा तो मैं जैन लोगों के साथ में उठ बैठ नहीं सकूंगा, तो वो सारा मिथ्यात्व की तरफ है। चाहे मैं स्वाध्याय ही क्यों ना करता हूँ, लेकिन वो भी मिथ्या है, क्योंकि वो मेरा पर्पस ही गलत हो रहा है, वो पर्पस कभी सर्व नहीं होगा। तो वैसे हर एक अपने जीवन में हर एक घटना को करते करते, हर एक क्रिया को करते करते उस क्रिया का पर्पस हमको तय करना है और उस पर्पस के प्रति अवेयर रहना है। क्रिया के प्रति आप अवेयर रहो या ना रहो, लेकिन पर्पस के प्रति अवेयर रहोगे तो क्रिया में भी आपकी शुद्धि होती चली जाएगी। यस सर। तो ये और है। हाँ, इस तरह से जब पढ़ेंगे ना आप, तो ये हाँ सारी चीजें आपके आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। वो आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा मेरू पर्वत से तो शुरू होता है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप ही जो है वो सेंट्रल है। तो अब आपके दिमाग में वो आ गया। अब आपको आपको अगर मैं कहूँ कि चेन्नई में आपका जहाँ घर है, तो उस घर का आप मुझे नक्शा बना करके दे दीजिए, या वो जगह का नक्शा बना करके दे दीजिए, तो आप नक्शा बनाए या ना बनाए, आपके दिमाग में वो नक्शा पक्का आप बैठा हुआ है। आपको कहीं से भी घुमा करके ले आए तो आप उस जगह पर आकर के कहोगे हाँ यहीं पर मेरा घर है। तो वैसी ही जो एक कन्विक्शन है वो हमारे अंदर में होनी चाहिए हर चीज के लिए, कि इसको इस तरह से किया जाए तो ही मेरा पर्पस सर्व होगा। और मेरा पर्पस जो है वो एक ही है कि मुझे उसमें से कुछ हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, उसमें से कुछ खुशी मिलनी चाहिए, उसमें से कुछ आनंद मिलना चाहिए। अगर वो पर्पस से मैंने किया है और अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो जो पर्पस है उसमें या तो कहीं पर गड़बड़ है या मेरी समझ में कहीं पर गड़बड़ है। तो उस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम होगा। शिल्पा बेन, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। I think I've asked a lot of questions today. I'll That's open okay, it that's okay, later. everybody will get clarity on that. No Mm. हाँ problem. हाँ, it is helping actually. Hmm. Now, I'll probably have more questions next week because I've yet to read and digest ma'am's last lecture. Because Hmm. especially towards the end, it was very fast. I couldn't even write everything down, so I'll have to Hmm. re-listen it. Yeah, revisit it. Mm. एक्चुअली है ना, इसीलिए मेरे पास थोड़ा नोट्स था, मेरे को थोड़ा टाइम लगा ये लेसन समझने को। फिर Hmm. मैंने एक बुक रेफर करा तो थोड़ा डिटेल मिला, तो फिर जब मैम बोल रही थी ना आबादा काल और ये सब, Hmm. Hmm. इसलिए मैं पोस्ट कर दी सर कि है ना हाँ, एटलीस्ट किसी को कुछ समझ में आ जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप हेल्प मतलब करते मैं हो। 4-5 साल पहले है ना स्थानक के इसमें कर्म ग्रंथ करके हम लोग ने एक वो करा था क्लास, हम्म, हम्म, तो थोड़ा बहुत उससे जानकारी भी थी। और दैट वाज द रीजन मैं ना चाहती थी कि अगर कोई नोट्स भी लिख के, मतलब मेरा एकदम सिली लैंग्वेज रखती हूँ मैं, ताकि हम्म, अचानक पढ़ के एक सेकंड में समझ में आ जाए। हाँ, आई वाज और थिंकिंग कि आगे चल के मेरे को ये काम आ सकता है, मतलब बिल्कुल आएगा, सेकंड थर्ड। बिल्कुल आपकी आएगा। वो नोट्स भी पढ़ने की बाकी है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। और उसमें उसको जैसे आपने लिखा है ना, बहुत अच्छे से लिखा है, उनको अलग अलग कर्मों को अलग अलग अपेक्षा से, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से भी आपने उसमें लगाया है। तो उसके साथ में हमको दोनों ही चीज को क्लब करना है कि ये कर्म की साइड है, अब उसके सामने आत्मा की साइड को भी हमने देखना है कि कर्म तो चाहे प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश से बंद करता है, होता है, लेकिन करने वाला तो आत्मा है ना। तो आत्मा का उस समय में क्या हाल है, तो जब वो समझ में आए कि कॉरस्पॉन्डिंगली आत्मा का
जो मोह राग द्वेष रूप जो परिणमन हो रहा है, वो उस वजह से वो यहाँ पर कर्मों का आना हो रहा है। तो आत्मा कर्मों का चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन अपने मोह राग द्वेष का तो कुछ कर ही सकता है। तो इस अपेक्षा से जब हम देखते हैं, तो हमको ये दो चीजें हमारे ध्यान में आती है। एक तो कि हमको आज इस समय में ये बात समझ में आ रही है, तो इसी समय में ही हम कुछ ऐसा डिसीजन ले, अ, ऐसी कुछ प्लानिंग करें कि जिससे हम आगे में ऐसी कोई परिस्थिति में ना बंधे। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि चाहे हम कर्म को कितना ही पावरफुल मान ले, चाहे हम उससे कितना ही परेशान हो ले, लेकिन कर्मों के अंदर में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो वो मुझे कहीं पर भी घुमा दे, कहीं पर भी परेशान कर दे, कहीं पर भी दुख का कारण बने। तो अगर दुख का कारण भी होता है तो ये मेरी नासमझ है, अगर परेशानी भी होती है तो ये मेरी नासमझ है। कर्म के अंदर में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। हम्म, तो ये जब दो बातें हमारे ध्यान में आती है, तो हमको इस जिनवाणी का, या जो प्रकृति का जो सच्चा स्वरूप है, वो उसके प्रति हमारा अहोभाव और बढ़ जाता है। सौरभ भाई, पहला वाला जरा रिपीट करेंगे? पहला आपने क्या कहा कर्म का? जैसे पहला जो 2 पॉइंट्स हमको ध्यान में आती है, कि पहला ये है कि हमको आज ये समझ में आने लगा इस समय हम्म। में कि ये पूरी जो पूरा जो प्रोसेस है हम्म। रियलिटी में, वो कैसे चलता है। मतलब कर्म का क्या रोल है, मेरा क्या रोल है। तो ये जब हम्म। हमारे समझ में आता है, तो आज की हमारी जो ये कहिए कि सीख कहिए, या जो हमारी एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी कहिए, उसके प्रति भी हम अवेयर हो जाते हैं। तो हमारा जो प्लानिंग होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि अच्छा, अगर ये बात है तो मैं इस तरह से प्लान करूं कि भविष्य में कभी भी मुझे इन परिस्थितियों का फिर से सामना न करना पड़े। हम्म। और दूसरी बात ये है कि हम्म, कर्म को करने वाला भी मैं हूं, भोगने वाला भी मैं हूं। पर और मैं उसके दुख का वर्णन करने वाला भी मैं हूं। तो क्या वास्तव में कर्म में ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे इस तरह से भ्रमित कर सके? तो कर्म में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अगर मैं हम्म। ये मानता हूं कि कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, तो ये भी मेरा अज्ञान है। हम्म। अगर मैं मानता हूं कि कर्म मुझे अच्छी चीज दे रहे हैं या बुरी चीज दे रहे हैं, तो ये भी मेरा अज्ञान है। क्योंकि जो कुछ भी बन रहा है वो चाहे कर्म की अपेक्षा से बनता है। जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति को बहुत धन का लाभ हुआ, तो हम कहते हैं कि पुण्य कर्म का उदय है। हम्म। वो धन भी है पुद्गल, कर्म भी है पुद्गल, और जीव जो है वो तो केवल जानता है कि वो उसके पास में धन का संचय हुआ है या कलेक्शन हुआ है। उसका वो कुछ कर नहीं सकता है ना। वो केवल जान सकता है कि उसके पास में धन है। अब हम कहेंगे कि भाई वो धन है तो उसका उपयोग करके वो अपने आप पास सुख सुविधा बढ़ाएगा। लेकिन जो भी सुख सुविधा बनती है, वो सुख सुविधा भी उसका भी वो अनुभव ही कर सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम कहीं घूमने चले गए, तो घूमने गए तो जहां हमने जो कुछ भी देखा, सुना, अनुभव किया, वो तो हमारा अनुभव का विषय है। वो चीजें हमारे साथ नहीं चल रही है। जैसे आप अगर पेरिस जाते हैं और एफिल टावर जाते हैं, तो आप एफिल टावर को देख सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एफिल टावर है। अब जब वहां से आप चले जाओगे तो वो टावर आपके साथ में नहीं जाने वाला है। तो वैसे ही हम केवल ज्ञान कर सकते हैं कि ऐसे हमारी परिस्थिति बन रही है, लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं वहां उस परिस्थिति में। तो हमको तो केवल उसका ज्ञान करना ही है कि ये परिस्थिति ऐसी बन रही है, और ये परिस्थिति में जो कुछ भी मुझे अनुभव हो रहा है, वो अनुभव मेरा विषय है, वो मेरा सब्जेक्ट है।
वो परिस्थिति मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो जब ये समझ में आएगा तो उस कर्मों का कोई भी प्रभाव हो, उसके प्रति मेरा कोई रिस्पॉन्स मैकेनिज्म नहीं होगा, उसके प्रति मेरा कोई रवैया नहीं होगा कि इसकी वजह से मैं दुखी हूं या इसकी वजह से मैं सुखी हूं या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो ये So, is this similar to what I read कि जो कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय से जो आती है सिचुएशन, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अ, अगर उसमें साता वेदनीय कर्म का उदय है हम्म, तो इवन सिचुएशन खराब हो तो भी आप उसमें दुखी नहीं होंगे, नहीं होते हैं। और असाता वेदनीय कर्म का उदय है तो सिचुएशन अच्छी है फिर भी उसमें आपको दुख का अनुभव हो सकता है। हाँ दैट somehow it relates हाँ to what you just हाँ said to आज me. शायद शिल्पा जी ने ऐसा कुछ वो डाला हुआ था। उन्होंने तो पूरा शी हैड कर्म पुट का सम जो नोट्स लाइक दैट डाला ओनली। था। हम्म। मतलब जैसे एक जैसे कोई एक माँ है, उसका 1 साल का बच्चा है। तो अब ये बच्चा जो है वो शरारत करते हुए माँ के बाल भी खींच रहा है। तो माँ को उस बाल खींचने का दुख तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर में वो हाँ। बच्चे की जो हरकतें हैं उससे उनको खुशी हो रही है। तो वो जो बाल खींचने का जो दुख है वो दुख रूप नहीं दिखाई देता है। हम्म वो अपने बाल सामने से देती है कि खींच तो, क्योंकि उसमें उसको बच्चे का आनंद देख करके उसके अंदर में आनंद आ रहा हम्म है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन तो उल्टी हो रही है कि अगर और कोई बड़ा आदमी होता वो बाल खींचता तो एक जापट भी दे देती, हम्म है ना। तो लेकिन वो बच्चा है, तो बच्चा है उसका प्यारा है, तो इसीलिए वो बाल खींच भी रहा है तो उसको दुख नहीं हो रहा है। तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर जब विषय में राग हो और कर्म का उदय असाता वेदनीय का भी हो तो भी जीव को दुख नहीं होता। और विषय का द्वेष हो उसका और उस हम्म समय में अगर कर्मों का उदय साता वेदनीय का भी हो तो भी जीव को दुख ही होगा। मतलब यहाँ पर हम विषय की अपेक्षा से और राग द्वेष की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। जब हम्म जीव ये राग और द्वेष से ऊपर हट जाए, वो अपने अस्तित्व को समझ ले, अपने स्वभाव को समझ ले, तो उसको ना तो साता वेदनी दिखता है ना असाता वेदनी दिखता है। ना तो यहाँ पर उसे दुख दिखता है ना वहां पर सुख दिखता है। उसे तो बस अपने अंदर में रहे हुए आनंद को ही अनुभव करना दिखाई देता है। आपको पहले ही सेमिस्टर में इतनी फाउंडेशन मजबूत करवा रहे हैं ये कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएगी, कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो हमको रियलिटी है उसके प्रति एक अलग सा व्यू पॉइंट देने के लिए रेडी है। तो जैसे आज मैं आप लोगों के साथ में ये चिंतन करते हुए मेरा अपना खुद का रिवीजन हो रहा है, तो मुझे भी ये ध्यान में आने लगा कि एक्चुअली तो उन्होंने पर्पस तो हमारे फर्स्ट पितृ विज्ञान सेमिस्टर। पार्ट 1 में ही बता दिया था। उन्होंने सेकेंड चैप्टर से ही हमको पर्पस बता दिया, लेकिन उसको मैंने चैप्टर के रूप में पढ़ा तो मैंने उसको इतने गहराई से सोचा नहीं कि हर चीज को मुझे इसी पर्पस के साथ में जोड़ना है। चाहे मैं संसार का कुछ काम करता हूँ या संसार से परे का काम करता हूँ, तो भी उसमें पर्पस तो यही होना चाहिए कि मुझे अंतरात्मा बनना है। हम्म तो ये एक ही पर्पस को लेकर के जब आप हर चीज को देखोगे ना,
चाहे वो कर्म विज्ञान हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो मिथ्यात्व की बात हो, चाहे वो सात व्यसनों की बात हो, किसी भी चीज को जब आप इनके साथ में जोड़ते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के साथ, तो आपकी उस विषय में क्लैरिटी और बढ़ती जाती है ना। तो अब यहाँ एटलीस्ट 2-3 सेमेस्टर तक तो आपको जो व्यवहार में जैसे चल रहा है, उसके अंदर में कैसे हमको ये अंतरात्मा वाली बात सुझानी है, कैसे उस डायरेक्शन में जाना है, उसकी बात होगी। बट धीरे 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 हमारे समझ में आने लगेगा कि इसको हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से एक्सेप्ट करना है, किस तरह से इसमें फेथ रखना है, तो ही हमारा काम बनेगा। सर सॉरी सर, ये अपना जो एक्स्ट्रा क्लास में निश्चय और व्यवहार का क्लास हुआ था क्या? मतलब मैं 3 क्लास मिस करी जो ये। आम, मैंने तो नहीं करवाया। अगर रोहित जी ने करवाया है तो कल्पेश भाई बता सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि वो तो ये थर्ड थर्ड पार्ट में है ना, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। हम्म। अच्छा अच्छा। वो हाँ। मतलब ये एक लेसन, बाकी लेसन्स तो समझ में आया है। निश्चय और हम्म। व्यवहार मैंने एक्चुअली शिल्पा जी से भी डाउट्स पूछे हैं हम्म। वो बॉम्बे, बट हम्म। स्टिल मेरे को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मेरे को ये लेसन में कुछ समझ आया मतलब ऐसा। एक्चुअली हाँ। मैं भी आज पढ़ रही थी, मुझे भी क्वेश्चंस है इसमें, हाँ, पूछिए ना, हाँ हाँ, पूछिए डिफिकल्ट पूछिए पूछिए पूछिए। एक्चुअली पूछिए पूछिए। दैट व्हाई दैट नए वर्ड इज, हम्म, मैंने ना एक्चुअली समरी के लिए खाली नोट्स बना दिया, हम्म। समझे जितना, हम्म। बट डिटेल में मैंने नोट्स नहीं बनाया। मैं बोली एक बार पढ़ूंगी वापस, अभी हम्म। तो हफ्ता है। हम्म। निश्चय और व्यवहार का थोड़ा सा मेरे को मतलब निश्चय नए क्यों बोल रहे हैं, व्यवहार नए क्यों बोल रहे हैं, नए का भी मीनिंग मैंने लिखा है, मतलब द वे ऑफ लुकिंग या एस्पेक्ट, जैसे हाँ देखने व्यू की। पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, हाँ एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव। हाँ, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव हाँ है। हाँ। हाँ। आप नहीं, बट मतलब यहाँ पर क्या बताना क्या चाह रहे हैं कि भाई ये निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, पढ़ा तब ऐसे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ही होगा आगे चल के, बहुत, हाँ, बहुत ही बहुत बहुत। इम्पोर्टेंट है ये बट तो। वापिस आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट सर कि एक्चुअली यहाँ पर क्या मतलब बता रहे हैं। ठीक है। नो, हाँ, मैं अपने जो थोड़ी सिर्फ सी एक समझ है लेसन। उसको लेकर के आपको थोड़ा सा खुलासा करूंगा कि जैसे हम संसार में कोई भी जैसे डिजाइन एक्टिविटी डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, या कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते भी है, तो उसमें हम एक होता है कि ये एक्टिविटी का अल्टीमेट गोल क्या है, वो हम सेट करते हैं। मान लीजिए कि आप शॉप में जा रही है, तो आप एक गोल तय करके जाती है कि मैं आज शॉप में इतनी चीजों की बिक्री तो करूंगी ही करूंगी। ठीक है, तो ये आपका गोल हो गया। अब ये जो गोल है, इसको गोल तक पहुंचने के लिए कैसे हम प्लानिंग करें। तो प्लानिंग करने के लिए फिर आप कहेंगे कि अच्छा, मुझे इतने बजे शॉप में जाना है, इतने बजे मुझे घर से निकलना है, इतना दूर मेरा शॉप है, इतना रास्ता लगेगा, वहां पर रास्ते में कहीं पर और कोई प्रॉब्लम आई, जैसे एक्सीडेंट हो गए किसी के, या ट्रैफिक जैम हो गया है, तो ये भी हो सकता है। फिर मैं शॉप में जाऊंगी और शॉप को खोलूंगी, तो शॉप के अंदर में ये चीज कहाँ कहाँ रखी होगी, इसका भी मुझे अंदाजा होना है। फिर ये वस्तु की कीमत कितनी होगी, ये भी मुझे अंदाजा होना है। फिर कौन सा ग्राहक इस वस्तु को खरीदेगा, उसकी भी मुझे समझ परख होनी चाहिए। तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स है आपके गोल तक पहुंचने के लिए। तब कोई भी एक पर्सपेक्टिव जो है
वो अपने आप में काफी नहीं है उस गोल तक पहुंचने के लिए। आपको हर पर्सपेक्टिव को जहां उचित हो वहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आप शॉप में पहुंचने के बाद आप ये नहीं सोच पाओगे कि मुझे तो घर से निकलना था इतने बजे, तो मैं इतने बजे घर से क्यों नहीं निकली, क्योंकि वो घटना अब खत्म हो चुकी है। अब जो घटना बन रही है वो आपके पर्पस तक ले जाने में आपको सुविधा करती है या नहीं, ये आपको तय करना है। तो वैसे ही हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाना है, अंतरात्मा से परमात्मा में बनना है। तो उनकी जो समझ है, वो समझ में मेरी कितनी क्लैरिटी है कि मैं किसको अंतरात्मा मानता हूँ, मैं किसको परमात्मा मानता हूँ। तो जब वो क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी लाने के लिए कुछ तो एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाने की अपेक्षा है, तो यहाँ पर अंतरात्मा का जो स्वरूप है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको जानना जरूरी है। आपने मान लीजिए पढ़ लिया कि अंतरात्मा ऐसा होता है, अंतरात्मा के 3 स्टेप है, सब कुछ पढ़ लिया। अब आप खुद किसी अंतरात्मा को प्राप्त जीव के सामने खड़े हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं कि नहीं कि ये अंतरात्मा हुआ है या नहीं। उस समय में आप किताब खोल करके तो नहीं देखोगे कि अच्छा ये जो अंतरात्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इनके मिले हैं। आपको तो इतना आत्मसात, इतना इंटरनलाइज हो जाना चाहिए कि वो आपको दिखे और उसी सेकंड में आपको पता चल जाए कि हाँ यही अंतरात्मा होता है ना। तो वो कब होगा कि वो निश्चय तब होगा जब मुझे अंतरात्मा का स्वरूप पता है, तो ही वो निश्चय होगा, है ना। जैसे हाँ आपके आपके मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर है कोई, वो आपको 25 साल से मिले नहीं है, आपकी तस्वीर देखी नहीं है उन्होंने, है ना। 25 साल से वो फैमिली में है, आपसे फोन पर बात होती है, लेकिन आपको कभी उन्होंने चेहरे से देखा नहीं है 25 साल में। अब वो आपके घर आते हैं और घर में सभी मेंबर्स बैठे हैं, घर के परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं। आपको वो कैसे ढूंढे? आपको ढूंढने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि आप कुछ बोलिए और वो आवाज को पकड़ करके वो ये सुन ले, अच्छा ये वही आवाज थी जो मैं फोन पर बात करता हूँ। तो यही होने चाहिए नम्रता जी। हाँ माने नम्रता जी के होने का निश्चय कब होगा? तो व्यवहार से जब उनकी जो वाणी है, उनका मुझे संपर्क हुआ होगा, तो उनका हाँ मुझे इतना कन्विक्शन हुआ है, इतना रियलाइजेशन हुआ है कि ये आवाज नम्रता जी की ही हो सकती है। तो यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, उसमें से आवाज तो एक नम्रता जी की यही लग रही है, तो यही नम्रता जी होनी चाहिए। अब जब तक वो उसका डिसीजन, उसका निश्चय नहीं कर पाए, तब तक वो आपके साथ में वो नम्रता जी हाँ वाला व्यवहार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो हमको तो जब आवाज मैं बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाना है, तो बहिरात्मा की कैरेक्टरिस्टिक को भी आत्मसात करना है, सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको अनुभव में लाना है कि ये है तो ये बहिरात्मा है। मेरे मन में एक इतना सा भी ख्याल आए कि मुझे बाहर जा करके एक आइसक्रीम खाना है, या मुझे बाहर जा करके एक कहीं ये चीज खरीदनी है, मुझे बाहर जा करके कहीं बाग में घूमना है, मुझे बाहर जा करके कहीं नदी किनारे बैठना है। तो ये इतना एक ख्याल भी आए, तो भी मुझे वो रियलाइज होए कि ये तो अभी मेरा बहिरात्मा बोल रहा है, अभी तो मैं अंतरात्मा की ओर आया ही नहीं हूं। तो वो जो निश्चय है, निश्चय का मतलब है कि कंप्लीट कन्विक्शन की जो जैसा है वो वैसा ही है। ये कन्विक्शन जो है उसको हम निश्चय कहेंगे। और इस कन्विक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो भी पाथवे है, इसको हम व्यवहार कहेंगे। जो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, माने मन वचन काया से हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा, अपनी धारणा में जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो व्यवहार है। अब उसमें कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं करेगा।
तो जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सब समझ करके, जान करके, अप्लाई करके, जब हम उनका पूरा एप्लीकेशन समझ लेते हैं, तो वो एक व्यू पॉइंट जो है, नए जो है, ऐसे अनेकों नए एक साथ इकट्ठा होंगे, तो हमारा कन्विक्शन जो है वो पक्का होगा कि ये ऐसा ही है। हमारे जो सात तत्व संबंधी भूल हो रही है, वो भूल का कारण ये है कि हम निश्चय से भी इन सात तत्वों को नहीं समझ पाए, हम डेफिनेटिवली भी उन सात तत्वों को नहीं समझ पाए। और जब वो डेफिनेटिव नहीं है तो हमारी गलती होती रहती है। किसी में तो हम कहते हैं कि इसमें आश्रव कैसे हो सकता है, ये तो अच्छी क्रिया है, ये तो हमारे गुरु जी भी बोलते हैं, हमारे साधु संत भी बोलते हैं, भगवंत भी बोलते हैं कि ये तो करना चाहिए, तो इसमें कहाँ से आश्रव होगा। माने आश्रव क्या है इसका डेफिनेटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से हम आश्रव तत्व संबंधी भूल करते हैं। बंध संबंधी जो उसका जो डेफिनेटिव अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम बंध को आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भूल हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि व्यवहार और निश्चय ये दो अलग प्रक्रिया नहीं है। एक स्टैंड पॉइंट पर आने के लिए जो रास्ता निकालना है, जो पाथवे है, जो मेथोडोलॉजी है, वो व्यवहार है। और उस स्टैंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसी को ही रियलिटी मान लेना, वो उसका निश्चय है। तो हमको यहाँ पर आत्मा का निश्चय नहीं होगा तो हमको केवल ज्ञान की क्या क्या अपेक्षा रहेगी, है ना। फिर तो वो वाली बात हो गई कि बच्चे को अम, ऐसी चीज चाहिए, चांद चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो उसको मिल ही नहीं सकता है, तो वो जब तक वो सयाना नहीं होगा तब तक वो यही सोच करके बैठेगा कि मुझे तो चांद चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो वैसे हमारी भी अपेक्षा होगी कि हमको केवल ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान में हम सब कुछ देख सकते हैं। जबकि जो केवल ज्ञान को धारण करने वाला आत्मा है, उस आत्मा को हम नहीं जान पाते, उसका हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमारा व्यवहार भी जो है वो गलत हो जाता है, जिसको शास्त्रों की भाषा में व्यवहार आभास कहा है, और वहां पर निश्चय का आभास किया है। मतलब जो निश्चय है उसको निश्चय के रूप में जाने बिना हम जैसा मानते हैं वैसा ही निश्चय कर लेना, ये निश्चय का आभास है। और व्यवहार को जाने बिना हम जैसा करते हैं उसी को व्यवहार मान लेना, ये व्यवहार का आभास है। तो यहाँ पर नए की अपेक्षा ये है कि हर एक व्यू पॉइंट, हर एक नए, हर एक पर्सपेक्टिव वो आपको उस दिशा में ले जाने के लिए उपयोगी होगा, तो वो आपके काम का है, नहीं तो वो भी आपके काम का नहीं है। ये प्रतिपादक मतलब जो उसको और गहराई से समझ दिखाता है, जो उसी की बात करता है, वो प्रतिपादक। हाँ, उसमें शब्द आता है वो प्रतिपादक। हम्म। हाँ व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? हम्म। तो प्रतिपादक माने व्यवहार जब निश्चय की ओर ले जाए तो वो निश्चय को प्रकाशित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रोटी वाला ही थोड़ा सा समझाना आसान लग रहा है कि आपको रोटी बनानी है, आपके ध्यान में रोटी कैसी बननी है वो आपके ध्यान में आ गया, उसकी कैसी साइज होनी चाहिए, कैसा शेप होना चाहिए, कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए, वो सब आपके ध्यान में आ गया। लेकिन आप आटा ही गलत चुनोगे तो वो रोटी बनेगी नहीं। आप नहीं उसमें बनना। पानी ज्यादा डाल दोगे तो वो रोटी बनेगी नहीं। तो माने जितना आटा उस रोटी को बनाने के लिए चाहिए, उसमें जितना पानी डालना चाहिए, उसमें जितना तेल डालना चाहिए, जो कुछ भी आप डालते हैं वो जितनी मात्रा में डालना चाहिए उतनी मात्रा में जब डलेगा तो ही आपकी रोटी बनेगी। तो ये जो आपने माप रखे हैं उसके, जो जो उनकी अम, अ, जो उनके प्रोसेस करी है, वो प्रोसेस आपको रोटी बनाने तक ले जा सकती है, इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो रोटी की प्रतिपादक है, ऐसा हम कह सकते हैं।
नहीं, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है नक्शे का बुक हम्म। में, हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका मतलब है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे, मत यानी बस कि टूट रहा हम है। व्यवहार को उसका मॉडल ले सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप ले सक मतलब जो उसके थ्रू हम समझ सकते हैं जो एक्चुअल। रिप्रेजेंटेटिव का इट हाँ, रिप्रेजेंट्स आई थिंक। हाँ, रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट कह सकते हैं। वही बात तो वही होती है, आप उनको हम्म। रिप्रेजेंटेटिव कहिए, उनको प्रोपाउंडर कहिए, या हम्म। उसका सपोर्टर कहिए, या उसका डायरेक्टिव कहिए। किसी भी अपेक्षा से जब वो व्यवहार उस निश्चय की ओर आपको ले जा हम्म। सके, तो वो आपका व्यवहार उस निश्चय का डायरेक्टिव है। हम्म। जैसे हम कहते हैं रोड पर, रोड साइंस जो होती है, स्ट्रीट साइंस हम्म। कहिए या कुछ भी, तो वो साइंस आपको एक दिखा रही है कि इस दिशा में ये होगा। आप हम्म। बिना झिझक के आप इस दिशा में ये अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो वैसे ही ये जो व्यवहार है वो एक साइन पोस्ट है, जो निश्चय का आपको बोध करवाता है कि इस साइन पोस्ट का आप अगर अच्छे से समझ लिए तो आप अपने निश्चय को प्राप्त कर लोगे। हम्म। एक और एक लाइन में है सर, सॉरी। हम्म। उसी प्रकार को ना है, उसी प्रकार व्यवहार सॉरी, आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ। जिस प्रकार मेरे के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार बिना प्रमाण का उपदेश नहीं किया जा सकता। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। दिस इज द पैराग्राफ बिफोर दिस लास्ट वन। हम्म। हाँ वो गुमानी राम जी पूछते हैं, यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया? तो पंडित जी कहते हैं, यही ना नम्रता, जिस प्रकार हाँ, म्लेच्छ यस, को हाँ। म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। हम्म। मतलब कि मेथोडोलॉजी अगर आपको पता नहीं है तो आपको एक क्या कहते हैं कि एक गोल दिखा दिया, तो वो गोल आप करोगे कैसे पार, अचीव कैसे करोगे? हम्म। तो वो अचीव करने के लिए उसकी मेथोडोलॉजी भी तो जाननी पड़ेगी। तो इसीलिए व्यवहार, अब उन्होंने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि व्यवहार जो है वो गोल सेटिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल सेटिंग तो आपको करनी है, हम्म। पर व्यवहार उस गोल सेटिंग की तरफ ले जाने में उपयोगी है। अब आप उस व्यवहार को ही सर्वोपरि मान लेंगे तो आप उस गोल पोस्ट तक जाकर के भी आप गोल पोस्ट को नहीं अपना पाएंगे। हम्म। तो आप उसी में ही अटक जाओगे कि अच्छा, मुझे तो यहाँ मजा आ रहा है, तो अब मुझे आगे गोल पोस्ट तक जाना ही क्यों है? तो उस अपेक्षा से कहा कि व्यवहार को भी त्यागना है जब हमारा निश्चय पक्का हो जाए। तो उनका प्रश्न ये है कि अगर व्यवहार को त्यागना ही है तो फिर उसको बताया ही क्यों जा रहा है? हम्म। अगर नहीं बताया, जैसे कोई चीज हम छुपा देते हैं, तो उन जिनको बताना है उनको वो पता ही नहीं है, तो उसके बारे में तो उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो वहां ये कह रहे हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय का काम होने वाला नहीं है। और हम जो एक प्राइमरी लेवल पर जब हम होते हैं, जब हमको निश्चय करने में ही दिक्कत आ रही है, उस हम्म। समय में अगर हम व्यवहार का लोप कर दे, व्यवहार की बात ही ना करें, तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? है ना? जैसे कोई कहे कि भाई हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलने जाना है जो अभी दिल्ली में है। तो अब हमने वो तो तय कर लिया कि उनको मिलने जाना है, लेकिन हम जहाँ है वहां से वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके बारे में हम सोचे नहीं। रास्ते हम्म। में आने वाली दिक्कतों को हम सोचे नहीं। कितनी समय में हम पहुंच पाएंगे ये हम सोचे नहीं। तो हम खाली उनको मिलना है करे तो पहुंच ही नहीं सकते। हम्म। तो पहुंचने के लिए तो बताना पड़ेगा भाई, फ्लाइट से जा सकते, ट्रेन से जा सकते, बस से जा सकते, गाड़ी से जा सकते,
इस रास्ते से जाओगे, यहाँ से वो रास्ता, यहाँ पर ये साइन पोस्ट होगा, यहाँ पर इस प्रकार की साइंस होगी, वो तो बताना पड़ेगा। पर हम्म बताते हुए भी आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो गोल है कि आपको प्राइम मिनिस्टर जी को मिलना है, उसको भूल नहीं जाइएगा। फिर ऐसा नहीं कि भी अच्छा ये स्टेशन तो बहुत बढ़िया लग रहा है, चलो अभी उतर करके यहाँ कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए, ये शहर को घूम लिया जाए, तो आपका गोल से आप भ्रमित हो जाओगे। हम्म तो वैसे ही हमको गोल तो मोक्ष का है, लेकिन हम अटक कहाँ जाते हैं व्यवहार में। तो व्यवहार से कहा कि भाई आप पुण्य के काम करोगे तो आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, तो फिर पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए हम पूजा पाठ आदि में हम अटक जाते हैं। अब वो उसका रास्ता जरूर है, लेकिन वो मीन्स टू द एंड है, एंड टू द मीन्स फाइनल नहीं नहीं। है। हम्म, ठीक है ना। तो वैसे ही हाँ। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम्म ऐसी बात है तो आप बताते ही क्यों हो कि आप पूजा पाठ करो, आप बताते ही क्यों हो कि आप उपवास करो, आप बताते ही क्यों कि आप तब निर्जरा करो। आप तो ये बताओ कि भाई आप आत्मा हो, आप आत्मा के रूप में रहो, तो आपका काम हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर मलेच्छ की अपेक्षा से वो कम ज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव की बात कही गई है कि अज्ञानी जीव को समझाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण और इस प्रकार का व्यवहार बताना जरूरी है, नहीं तो अज्ञानी ज्ञानी नहीं हो सकता। हम्म एक डाउट, पेज नंबर 30 में गुमानी राम श्रद्धांत तो निश्चय का रखे हम्म। और प्रवृत्ति व्यवहार रूप। हम्म। प्रवृत्ति मीन्स एक्टिविटी। एक्शन, हाँ। अंडरस्टैंडिंग। हम्म। अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो निश्चय से ही आ, आ, आत्मा की रखे या जिसकी भी निश्चय से कहिए, लेकिन जो एक्टिविटी जो है वो व्यवहार की रहेगी। जैसे आपकी, आपने निश्चय तो ये कर लिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना है, तो अब उसमें जो एक्टिविटी होगी वो तो व्यवहार से होगी। व्यवहार से होगी इसका मतलब क्या, कि वो जैसे 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 वो एक्टिविटी आपको आपके निश्चय के करीब लेते जाती है, वैसे वैसे वो एक्टिविटी पीछे छूट जाती है और आप आगे बढ़ते हुए अपने निश्चय को प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो एक्टिविटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एक्टिविटी को आम, करना तो बहुत जरूरी निश्चय बनेगा। को आपकी आवाज कट गई नम्रता जी। आई थिंक उनका कनेक्शन फ्रीज हो गया। में हाँ, अभी आया। नहीं, फिर नहीं, हाँ, आवाज टूट रही है घड़ी घड़ी। हम्म। हम्म। हम्म आप क्या पूछ रहे प्रवृत्ति का थे। एग्जैक्ट मीनिंग क्या बोलेंगे सर? प्रवृत्ति का एग्जैक्ट मीनिंग यही एक्टिविटी ही है। प्रवृत्ति एक्टिविटी ही है, मन एक्टिविटी है। वचन काया की जो एक्टिविटी है वो प्रवृत्ति है। अच्छा, थोड़ा एक्चुअली में सर आई एम जस्ट आस्किंग, मीनिंग का हम्म। कोई बुक मिलता है क्या? मतलब आजकल के और स्टार्टिंग में तो कई मीनिंग्स लिखने पड़ रहे थे, ये लास्ट में थोड़े बहुत 5-6 वर्ड ऐसे 4-5 वर्ड हैं। हम्म। तो इसमें परमात्मा में मीनिंग्स का है क्या? मतलब जो हाँ, ग्लॉसरी एक की कोई बुक तो मैंने देखी नहीं है यहाँ पर। मेरे पास एक डिक्शनरी है, हाँ, मैं देखता हूँ, अगर जैन मिलती है डिक्शनरी तो भी आई विल होगी। शेयर। हाँ, हाँ बहुत शुरू में डाला था अपने क्लास में, हाँ हाँ अपने हाँ। हम्म। ग्लोसरी का लिंक डाली थी। हम्म। हम्म और पास इसमें तो कैसे है कि उनकी उन्होंने जो अ, हिंदी भाषा का प्रयोग किया है ना, तो ये हिंदी भाषा हाँ, साहित्य के रूप में प्रयोग किया है, इसीलिए हम्म बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको बोलचाल में नहीं मिलेंगे। तो आप हिंदी की भी कोई डिक्शनरी होगी, हिंदी टू इंग्लिश, उसमें से भी आप निकाल सकते हैं इनको, पर क्योंकि उसमें भी ऐसा हाँ होता है वो तो सौरभ नहीं भाई है। कि जो हिंदी में जो मीनिंग है उसका, या जो उपयोग किया जाता है, वो उससे कभी कभार इसकी, इसमें जो उसका मीनिंग डेफिनेशन होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है। होगी, लेकिन आपको हम्म। एक पर्सपेक्टिव तो मिल पाएगा हाँ, कि यहाँ पर ये अपेक्षा से ये शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उनकी भाषा जो है वो साहित्य के रूप में है।
तो साहित्यिक हिंदी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल ही होती है समझना, तो उसको कॉन्टेक्चुअली ही समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली आज मैंने यही किया है, मैंने पार्ट 3 का उसमें से शब्द निकाले हम्म। जो मुझे मुश्किल लग रहे थे। हम्म। फिर उसका मैंने वो गूगल भी किया और गूगल ट्रांसलेट में भी किया कि जैनिज्म में क्या उसको कैसे उपयोग किया है और उसका यस, सामान्य अर्थ क्या होता है। हम्म। तो मैंने लिखा है, अभी देखती हूँ, मैं पिक्चर करके नम्रता जी आपको भेज सकती हूँ। थैंक यू सो दूसरी मच। बात ये है कि ये जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज का कोई फिलोसॉफी के साथ में जुड़ान नहीं है। आपको अगर वो सब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव पता चले ना, तो लैंग्वेज के वर्ड आपको उसके अनुरूप समझ में आएंगे। हाँ आएंगे, हाँ, तो बट अभी इसके क्या लिए होता है कभी कभी। पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है हमको। ऐसे जैसे यहाँ पर कैजुअली अगर पढ़े ना तो लेसन समझ में आ जाता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना वो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजिंग। पढ़ना ही नहीं है कभी। नहीं नहीं सर, नहीं। एग्जाम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ आंसर व्यू जो से रहता पढ़ना है, ही नहीं है। हाउ एप्ट वी आर, वो चेक करने के लिए एकदम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे हम्म। मैथ्स द में एक नोटबुक लेना पड़ा, फिर 1 का 4, 2 का 6 ऐसे कर करके लिख के फिर करेक्शंस करके फिर समझ के लिखना पड़ा, मतलब घड़ी घड़ी उसको मूव कर करके मैच हम्म। द फॉलोइंग में। तो वही वहां पर वो एक आध लाइन के कारण, जैसे वो सिमिकन का एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, मिस्टेक हुआ तो एकदम इसमें हम्म। अगर पूरा लाइन टू लाइन समझ रहेगा ना तो ही हम्म। आप कर पाओगे। शायद अच्छे पर मार्क्स और आ जाए। हम्म, पर नहीं मैं नहीं, पर मैं अपना उद्देश्य तो कुछ और है। हाँ बिल्कुल, है, मार्क्स बट आपका उद्देश्य स्टिल नहीं होना चाहिए। नहीं, मार्क्स नहीं होना चाहिए, बट मेरे को इससे समझ में आया कि मतलब वो तीनों बुक पढ़ लिया था और जैसे क्लास हो रहे थे कर रहे थे नोट्स लिख रहे थे हो रहे थे। हम्म। एग्जाम के पहले पूरा बुक एक बार पढ़ने को हुआ ना तो फिर मतलब ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो हम्म। थोड़ा और डीप गए लेसन्स के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल, यही उनका इंटेंशन भी वही है, पर्पस भी यही है कि आप पहले तो जब क्लास होगी ना तब आप पढ़ोगे, सेकेंड टाइम जब आप जर्नल राइटिंग करोगे तब आप पढ़ोगे, थर्ड टाइम जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब पढ़ोगे, और फोर्थ टाइम आप एग्जाम जब चल रही है तब पढ़ोगे। तो 4 बार जब आप पढ़ोगे तो वो चीज आपके मन में, आपकी समझ में इतनी डीप चली जाएगी कि अब आपको उस लेवल की जो कन्विक्शन है, उस लेवल का जो रियलाइजेशन है वो आपका मजबूत होता जाएगा। तो उसमें फिर आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी, हाँ है ना। एक वर्ड आज सही है मैंने सर, पढ़ा, बट लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कहाँ मैंने पढ़ा। आठ उपचरित, रंग से होते हैं। उपचरित का उपचारित मीनिंग। जो है ना वो व्यवहार और निश्चय नय की अपेक्षा से है। हाँ, तो उपचारित माने फॉर्मल। फॉर्मल। हम्म। हाँ नहीं औपचारिक, आपने औपचारिक जो कहते हैं। हाँ औपचारिक, औपचारिक, हाँ। हाँ तो जब आप आगे पढ़ोगे ना, अ, अभी 6th या 5th या 6th सेमिस्टर में आएगा आपको पूरा ये नए अलग अलग प्रकार के नए हैं, उनके व्यवहार नए को कैसे फर्दर सेगमेंटलाइज करना है, निश्चय नए को फर्दर कैसे क्लासिफाई करना है, तो उसमें आएगा उपचरित अनुपचरित ऐसे सब आएगा। मतलब एक से वन वर्ड आंसर होते हैं ना सर, मैं वही प्लान कर रही हूँ अपन कैसे इसको, जैसे बहिरात्मा लिखे तो एक हम्म। लाइन में, मतलब अब एक 6 महीने बाद वापिस आप पूछेंगे ना मेरा नहीं है, बहिरात्मा है। हम्म। तो बहिरात्मा अ, आप इतना ही लिखे कि जैसे बहिरात्मा जो बाहर की दृष्टि से अपना जीवन निर्वाह करता है वो बहिरात्मा है। यस, मैं वही चाह रही थी कि ऐसा कुछ बुक सर, सॉरी, मतलब आप लोग जैसे आप लोग सबको पढ़ाते हैं ना सर, वैसे मैं टिपिकल नहीं पढ़ाता दो हूँ। ऐसे मेन जो होते हैं ऐसा है वो अपन को ऐसा नम्रता जी कि ये जो विषय है ना, हमारा जो जैन फिलोसॉफी का जिनवाणी का जो विषय है ना, ये पूरा
माने जीव का जो पूरा स्वरूप है, आवाज नहीं अजीव आ का रही। जो पूरा स्वरूप है, नेचर का जो पूरा हाँ स्वरूप है, उसको पूरे को वो डिस्क्राइब कर रहा है, ताकि हम अपनी पोजीशन को ध्यान में लेके उसमें आगे काम कर करें। अब यस इसमें यस। होता ये है कि हर जीव जो है वो अपने ज्ञान में, उसमें अलग अलग अंतर होता है। जैसे कोई कोई जीव जो है वो ज्ञान की उस अवस्था में है कि उसको केवल इतना ही बताया जाए कि तुम आत्मा हो, इसका तुम ध्यान करो, तो वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन करके परमात्मा भी बन जाए। नहीं कोई नहीं मैं जीव ऐसा भी हाँ होता है। तो मेरा कहने का ये है कि इसीलिए इस पर कोई एक किताब नहीं बन सकती है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अपेक्षा से समझ होती है। तो आप लोगों को भी हाँ गाइड बुक्स है, आपके कोर्स मटेरियल में है जाएंगे ना आप, है तो वहां पर भी गाइड बुक्स है जो है इनको है थोड़ा सा और खुला है। करके बताती है। मेरा एक्चुअली क्या पर्सपेक्टिव था कि अब जैसे प्रिया मैम है ना, हम्म। ये अनुयोग है, हम्म। मतलब तो उसी टाइम स्ट्राइक होना कि भाई देखिए मेरे को याद भी नहीं आ रहा है वो अनुयोग के नाम। हाँ। तो मतलब इमिडिएटली अपन को वो चीज स्ट्राइक होना कि वो मतलब हम्म। व्हाट शी मेंट इन दैट सेंटेंस, हम्म। मतलब वो तो कौन सा आप अनुयोग अप्लाई कर रही है। आप उसको प्रैक्टिस करिए ना, कि जैसे हाँ वही। कोई भी, जैसे आप अपने, जैसे पोते पोती होंगे, तो आप उनको जब कहानी सुनाती है तो आप तुरंत में मन में ये ले लीजिए, अच्छा ये तो यही तो प्रथमानुयोग है, मैंने कहानी बताई। फिर वही बच्चों को जब स्कूल में जा रहे हैं तो आप उनको बोलते हैं कि भाई स्कूल में जाओगे तो स्कूल में पढ़ोगे, तो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तो बड़े होकर के तुम कुछ कर पाओगे। तो ये जो है यही कर्णानुयोग है। तो मेरे तुरंत में ध्यान में आ गया, अच्छा यही हाँ कर्णानुयोग है, करने जैसा क्या है, वही कर्णानुयोग है। फिर आप कहोगे कि अच्छा स्कूल में जा रहे हो, कहीं किसी से लड़ाई मत करना, किसी से किसी को अपना टिफिन नहीं दे देना, किसी के साथ में ये नहीं कर लेना, वहां शैतानी नहीं करना, वहां अच्छे से बैठना, तो यही तो चरणानुयोग है। अनुयोग। तो ये तुरंत में आ गया, अच्छा चरण माने चलना, तो जैसे चलने की बात है तो वही चरणानुयोग हो गया। अच्छा फिर आप उनको वो पूछे कि भाई अच्छा ये सब करके हमको करना क्या है, तो जब बड़े बनोगे तो तुम किसी लायक बनोगे, ये तुम्हारा मकसद है, ये तुम्हारा गोल है। तो वो जो गोल है वो तो द्रव्यानुयोग का विशेष हो गया, तो यहीं पर तो द्रव्यानुयोग हो गया। तो जैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में आप इसको अप्लाई करते चले जाओगे ना, तो आपको वो टर्म्स जो है वो इतनी अंदर में चली जाएगी कि आप हर चीज में प्रथमानुयोग क्या है, द्रव्यानुयोग क्या है, चरणानुयोग क्या है, कर्णानुयोग क्या है, ये आपके ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं ये नहीं बताना है कि ये कर्णानुयोग का विषय है, ये चरणानुयोग का विषय है, ये आपके कन्विक्शन के लिए है, आपके हाँ कंफर्मेशन के लिए है। तो सही है जब सर। आपको कंफर्मेशन प्रैक्टिस से होना शुरू हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो नम्रता जी, हम्म। मैं वो जो जैन डिक्शनरी मैंने पहले शेयर की थी, वो वापस अच्छा मैंने अभी आपको भेजी है व्हाट्सएप पे। अच्छा। वो 400 पेज की डिक्शनरी है, उसमें अपने सब वर्ड कवर है। अपने इसके ये परमात्मा हम्म। के। हाँ हाँ हाँ। और वैसे इंग्लिश में है, तो क्या आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। हम्म, हाँ हाँ, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जाना है ना, तो एक कोश है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। तो ये बहुत डिटेल में जाता है। पर उसका बेनिफिट ये है कि वो हर शब्द जो अपने शास्त्रों में उपयोग में लाए हैं ना, उनको वो कौन से शास्त्रों में कहाँ कहाँ पर उपयोग में लाया था और वहाँ उसका कॉन्टेक्स्ट हाँ। क्या था, उन सभी को वो वहाँ पर कंसिडर करता है। तो ये 5 अच्छा वॉल्यूम में आता है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। तो अगर हाँ। चाहे तो आप उसमें से भी अम, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे हम्म। कंसेप्ट जो है ना, उनके शब्दों के अलग अलग प्रयोजन से उनका प्रयोग किया गया है, तो अलग अलग वहां पर अर्थ भी बनते हैं। तो कौन सा अर्थ उस समय में ज्यादा कहाँ उपयोगी लग। है वो समझाने के लिए वहां पर उन्होंने दिया है। तो उसमें करीब 60-70,000 वर्ड्स है। हम्म।
और बहुत सुंदर है। आपको उसकी प्रिंटेड कॉपी भी मिल जाएगी, नहीं तो इंटरनेट में भी मिलता है। इंटरनेट या वाला मेरे पास जो है ना, उसमें कहीं कहीं पर जो है वो प्रिंट ठीक नहीं है, उसकी वजह से दिखाई नहीं देता है। पर आई थिंक कि अगर आप अच्छा। परचेस करते हाँ हैं वहां से, तो उसमें आपको अच्छी प्रिंट मिल जाएगी। हाँ बहुत सुंदर है उसमें सब, हाँ। समझने के लिए। यस। टू डू दैट सर। हम्म। और एक चीज बोलना था सर, हम जब अप्लाई करें ना, सो दे आस्क्ड हिंदी में चाहिए बुक, इंग्लिश में चाहिए। हम्म। इट वाज ओनली वन चॉइस कि आप एक ही ले सकते हो। कभी हम्म। कदार क्या होता है सर, हिंदी में नहीं समझ में आया तो उसको इंग्लिश में गो थ्रू करे तो समझ में आ जाता है, मतलब। अभी अभी बट ऐसा है कि उनके पास में सारी ही बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। जैसे हम लोग थर्ड ईयर से सारी बुक हिंदी में या गुजराती में है। तो अभी वो लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग थर्ड ईयर अच्छा। में आओ तब तक उनका काफी हद तक ट्रांसलेशन हो गया होगा। तो वो अच्छा। हिंदी और इंग्लिश की तो इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश बैच में है और अगर आप हिंदी पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो आप इंग्लिश मंगवाइए। नहीं, वो बोले कि आई सेड वी आई पे फॉर दोनों, हम्म। सो दैट आई कैन गेट बोथ द बुक्स। हम्म। वो बोले नहीं, यू हैव टू टेक ओनली वन। फिर मैंने हम्म। हिंदी लिया। आप हिंदी ले सकती है, और अगर आप उन इन किताबों को अलग से परचेज भी कर सकती है। आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगी ना, ptst.in करके वेबसाइट है, उसमें से आप वो बुक्स परचेज भी कर सकती है। तो ये जो आपको अभी बुक्स दे रहे हैं ना, ये पार्ट ऑफ आपका सिलेबस है, तो उसकी आपको अलग से फीस नहीं देनी पड़ती है। वो किताबें आपको फ्री मिल रही है। पर अगर अच्छा। आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में भी चाहिए है, तो आप उनको खरीद सकती हैं वहां पर, इनको नहीं पूछना है। आप खुद ही ptst.in में जा करके वहां से आप ये बुक्स परचेज कर सकती हैं। PTST। हाँ, हाँ, पंडित। पंडित आवाज। टोडरमल और स्मारक टोटल। ट्रस्ट। स्मारक ट्रस्ट, हाँ। हम्म। PTS। अच्छा, मतलब ये अपने लेसन्स के ही ये नोट्स रहे यही बुक्स है, वहां पर भी है। अच्छा। यही बुक्स है। पर सौरभ अगर भाई, हाँ। अनीश के कजिन जो है वो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में, हम्म। थ्रू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। हम्म। वो बोले कि वो तो इंग्लिश में ही कर रहे हैं और उनके पास सारी पुस्तकें इंग्लिश में है। आई शेयर्ड द अब लिंक। वो यही बुक्स है या नहीं ये पता नहीं है। हम्म। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि समय सार पढ़ रहे हैं, तो समय सार जो बुक है ना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन काफी लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है। हम्म। पर समय सार को हुकुमचंद जी भारिल ने जैसे ट्रांसलेट किया है, हम्म। उस तरह का ट्रांसलेशन वहां पर नहीं आएगा। तो हुकुमचंद हम्म। जी भारिल जी की जो किताबें हैं वो सारी हिंदी में लिखी गई है। हाँ, वो तो हिंदी अब में। उन किताबों का इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन हो रहा है। तो अच्छा अच्छा, जैसे भारिल जी अभी की। आपने जो वितराग विज्ञान पढ़ा 1 2 3, तो हम्म। ये सारा ही जो है ये भारिल जी ने लिखा है। हाँ, ये रहे अब मेरे पास हम्म, वही ओरिजिनल उनकी पुस्तक है। हाँ। तो अब ये जो दूसरे दूसरे कोर्सेज करते हैं ना, तो वहां पर वो अलग अलग ऑथर्स को लेकर के करते हैं। तो हम्म। वैसे इनके अलग ऑथर्स के नाम से आपको अलग किताबें भी मिल जाएगी। हाँ, भारिल लेकिन जी की नहीं होंगी हाँ, उनकी ओरिजिनल। इंग्लिश में नहीं होगी। और फ्रॉम कोर्स पर्सपेक्टिव, आपको वो हमेशा ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके क्लास में तो वही बात चलेगी। ऐसे तो ऐसा हम्म। नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, मैडम तो हम्म। इतनी सारी किताबों की रेफरेंसेस देती है जो हम्म। हमारे कोर्सेज में भी नहीं है। हम्म। लेकिन वो इस कोर्स की अपेक्षा से यहाँ पर उसका आपको लाभ नहीं होगा। अच्छा। आपकी जानकारी के लिए, आपके समझ के लिए, आपके डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सब जरूरी भी है और हेल्प भी करेगी। हाँ। लेकिन इस कोर्स को लेकर के उसमें से आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी ऐसे। तो अब यही जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इसको लेकर के इंग्लिश में भी 2 3 लोगों ने लिखी है ये। तो अच्छा। अब उनकी तो पूरी किताब ही उसी एक सब्जेक्ट पर होगी। हम्म। पर वो आपको समझने के लिए अच्छा है कि फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। उसको आप इस कोर्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर कुछ शब्दों को अलग से लिखा गया है, कुछ मैटर को अलग से लिखा गया है, यहाँ पर इस अलग से लिखा गया है, तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो दैट कैन बी एक्स्ट्रा रीडर काइंड दैट ऑफ। कैन बी एन एक्स्ट्रा रीडर।
डेफिनेटली, और होना भी चाहिए। This is a very comprehensive course which can be expanded with your own um, decisions and desire as well। तो आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो? जैसे ये जो मैंने सिद्धांत चक्र जी की जो ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जो बताई, तो ये प्रिस्क्राइब नहीं है परमागम में, but it is a dictionary that is probably the only dictionary that carries more words that are related to or they were applied or used in scriptures। तो उसमें फिर आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि इसमें मुझे ये शब्द को यहाँ पर कैसे समझना है। जैसे उसके अंदर में आप कर्म को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कर्म के ऊपर में करीब 6-7 पेजेस है जिसमें उन्होंने डिटेल में कर्म को समझाया है। और वो भी कौन से, जैसे मेन कर्म के जो सिद्धांत है वो आए हैं गोमटसार जी में, और गोमटसार जी में तो कर्मों का सिद्धांत लिखा गया है, लेकिन दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड षटखंड आगम। तो षटखंड आगम के भी अलग अलग आचार्यों ने उस समय में जैसे जैसे उसमें से ट्रांसलेशन करके वो अपना अपना अनुभव लिखते हुए, तो वैसे 20-25 ऐसे शास्त्र होंगे जो कर्म को लेकर के बात करते हैं। तो अब ये जो है उन सभी का रेफरेंस उन्होंने उस डिक्शनरी में दिया है कि ये शास्त्र में इस अपेक्षा से कर्म को बताया गया है, उस अपेक्षा से वहां पर बताया गया है। अब आप जब उसमें ये प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश का पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पर ये किस अपेक्षा से मुझे लेना है, कैसे समझना है। तो दैट हेल्प्स। अब कर्म को लेकर के एक है जो मैंने पढ़ी थी, अ, अ, दीपचंद जी कासलीवाल करके एक ऑथर हो गए हैं, और उनकी हुई है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट बुक, पर कर्म को लेकर के ही है वो किताब। उसमें उन्होंने बहुत सुंदरता से कर्म को बताया है, और कैसे मतलब कि उसकी एक एक चीज खोल करके रखी है कि ये कैसे स्थितिबंध अबाधा काल इन सबको कैसे समझना है। मुझे वो ध्यान में आएगा ना तो मैं ग्रुप में ही रख दूंगा, तो आप लोग वो भी किताब ढूंढ सकते हैं। कर्म प्रति प्रदीपिका या ऐसा ही कुछ नाम है उसका। तो हाँ हाँ, भाव दीपचंद, दीपिका, भाव भाव दीपिका। दीपिका, या दैट इज राइट, भाव दीपिका। तो बहुत बहुत सुंदर है ये भी, इसमें भी बहुत डिटेल में उन्होंने कर्म को समझाया है। तो ऐसे सब रेफरेंसेस है जो आप इस कोर्स के अलावा भी आगे अपने ही एवोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उनकी अपेक्षा यही है कि हम तो केवल आपको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट में कितना डीप में जाना चाहते हो ये आपके ऊपर तय है। सही बात। और ये भाव दीपिका के ऊपर में एक प्रवीण जी शास्त्री ने उनका व्याख्यान किया है। कुछ 125 लेक्चर्स है उनके, वो भी यूट्यूब में हो। मिल जाएंगे आपको। अच्छा। तो यहाँ पर भी वो हर एक कर्म को कैसे समझना है इतने डिटेल में वो व्याख्यान कर रहे हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। यस सर। Yeah. तो स्काई इज द लिमिट, इतना मैं कहूंगा कि यस सर। हम तो एक 4 पेज की किताब के चैप्टर को लेकर के, और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि खुल नहीं पाएगी, हमारी दृष्टि खुल नहीं पाएगी। इसीलिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और इससे हमको आगे कितना कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको सुन करके कितना हम इसकी गहराई में जा सकते हैं, ये अपने अपने ऊपर तय होगा। यस यस सर। और आज तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं पर भी कोई कमी नहीं है ज्ञान की। मीडियम बहुत है, हम कितना उठा पाएंगे ये हम पर है। सही बात। द ओनली थिंग दैट आई कैन से कि परमागम में जितना सिस्टमैटिकली हमको पढ़ने मिल रहा है, जितना समझने के लिए सिस्टमैटिकल एप्लीकेशन है, उतना मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव। तो है आप है।
आप उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेमेस्टर के बुक्स के बारे में कुछ डिस्कशन है, वो कैसे मतलब स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, एग्जाम खत्म होने के एक वीक के बाद में होगा, जैसे 4 अगस्त को लास्ट डेट है एग्जाम्स खत्म हेलो। होने की। हेलो। हाँ नम्रता जी। आपकी आवाज बहुत कट रही है नम्रता जी। हाँ, वो मेरे की आवाज नहीं आ रही थी, बोल रही थी कि वो सेमेस्टर के बुक्स के बारे में कैसे, मतलब अभी कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है। आपने वो फॉर्म तो भर दिए है ना? सेकंड सेमेस्टर के? हाँ। नहीं ना। नहीं, आपके एक साल की एक साथ ही हो हाँ, जाती एक है साल फॉर्म। का एक साथ में हाँ, होता है। हाँ, तो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स तो आ ही गई होगी ओके। आपके इसमें। अच्छा। हाँ, इसमें आ ही गई होगी। आपको अक्टूबर या अक्टूबर एंड तक में नेक्स्ट 2 सेमेस्टर की बुक्स के लिए फॉर्म्स देंगे वो। तो अभी आपके पास सेकेंड अच्छा, सेमेस्टर की तो बुक्स आ गई है। सेकेंड सेमेस्टर की जो जो एग्जाम पहले कब जो होती है? आई थिंक कि जनवरी में जनवरी। जाएगी। जनवरी। जनवरी में जाएगी। हम्म, वैसे तो दिसंबर में होती थी, पर ये अभी थोड़ा सा स्केड्यूल एक एक महीना पीछे जाने लगा, तो अब पर्यूषण में जैसे 2-3 हफ्ते क्लासेस नहीं होगी, हम्म। तो उसकी वजह से फिर वो 3 हफ्ते के जो है वो पीछे खींचा जाता है। तो यूजुअली उनका ये होता था कि बाई फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपका सेमिस्टर खत्म हो जाए, एंड देन फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ दिसंबर आपकी एग्जाम शुरू हो जाए, तो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में खत्म हो जाए। पर अभी वो हो नहीं रहा है। जैसे अभी एग्जाम्स जो जाएगी तो एंड ऑफ जनवरी तक जाएगी, तो मतलब आपका नेक्स्ट सेमिस्टर जो ईयर जो है वो फरवरी में शुरू होगा। सर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी 3 बुक्स है ना वो, मैं नाम भूल गई उसका। तत्व ज्ञान तत्व पाठमाला। ज्ञान तत्वज्ञान पाठमाला है अभी। पाठमाला हाँ, वन टू तत्व अच्छा ज्ञान अच्छा पाठमाला है आपकी। और अच्छा आपके अच्छा। साथ में होगा बारह भावना की जो सेल्फ स्टडी होगी। निमित्त अच्छा बारह उपादान है भावना नहीं, क्या? 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके तो ओके। उनकी वो सेल्फ स्टडी की 3 बुक होगी आपकी। ओके हाँ। सर, अभी फर्स्ट फर्स्ट पेपर में नौकार मंत्र एक अनुयोग ने बोला था, वो भी रहेगा। सेकेंड सेकेंड पेपर में थर्ड में और ऐड है क्या? विज्ञान। अभी आपकी जो सेल्फ स्टडी की किताबें जो है ना, वो तो आपकी अगर जो नहीं हुई है अभी तक के पेपर में वही अब बची है। नमोकार मंत्र का अगर आपका फर्स्ट पेपर में हो गया और शाकाहार का अगर सेकंड पेपर हाँ, में हो गया, तो वो दोनों को तो अब वो वापस से पूछेंगे नहीं। कारी पेपर में होगा। बुक एक्स्ट्रा बुक है क्या? नहीं, आई थिंक वितराग विज्ञान 3 के तीन है, साथ कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं एक्स्ट्रा है। बुक नहीं है। ओके। हम्म। बिकॉज और ज्यादा करके है ना वो लोग ज्यादा करके जो सेल्फ स्टडी है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं। मेनली तो आपकी जो जो आप क्लास में पढ़ते हैं ना उसी में से ही ज्यादा फोकस्ड होता है उनका क्वेश्चन है। ओके, हम्म। शाकाहारी में से 4-5 क्वेश्चंस थे। अच्छा, क्योंकि उनका फोकस जो है वो मेन जो सब्जेक्ट है उस पर वो ज्यादा होता है। यस यस सर तो सर, शाकाहारी पहले यही सोचते थे, बट हम्म। देन आफ्टर रीडिंग द लेसन उसमें 4-5 चीजों का दिया हुआ था। हम्म। जैसे मतलब वेजिटेरियनिज्म के हम्म। बारे में, हम्म। गाय के मतलब गाय के दूध के बारे में, हम्म। फिर हनी के बारे में, हम्म। फिर वो गेहूं और चावल के बारे में। मतलब मैं इसको समझ में नहीं सोचती थी, बस ठीक है चावल चढ़ा रहे हैं। अब हम्म। इसमें चावल क्यों चढ़ा रहे हैं? हम्म। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी सर? कट रही है वैसा। हाँ वही, नहीं किताब से काफी कुछ समझ में आया।
आवाज कट रही है सर, हाँ, शायद। नेटवर्क का इशू लग रहा है आपके। हाँ, अगर पता नहीं। फिर से भी पढ़ना हुआ नहीं ना तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी आपको? अगर सेल्फ स्टडी की नहीं किताब फिर नहीं से पढ़ना होगा तो भी दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको? नहीं क्योंकि नहीं 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 सर। मेन बुक जो है वो तो करीब लगा ये 40 या 50 ओके। पेज की है, तो उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। ठीक है सर। हम्म। वो भी- आवाज कट रही है आपकी। नेटवर्क का सॉरी। कोई इशू तो है आपके उधर? ठीक है सर। हाँ नहीं हाँ, नहीं, हाँ होगा। सही है सर। ठीक बस है अब तो खाली वितराग अच्छे विज्ञान से 3 में से पढ़िएगा। आएगा। हाँ, हाँ अभी थैंक यू विकलांग सर। विज्ञान 3 में से आएगा। ओके, अच्छे से हाँ पढ़िए और अच्छे से परीक्षा दीजिए और अपना ज्ञान वर्धन हाँ करिए। सर। हम्म। सही है सर। थैंक यू सर। चलो, जय थैंक जिनेन्द्र। यू जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वो पीटीएसटी की लिंक मैंने यहाँ पे चैट में शेयर की है, इफ यू हैवंट सीन कॉपी कर लीजिए हम्म। हाँ बिफोर आई क्लोज इट। हाँ, आप वो भेज सकते हैं मेरे इसमें। हाँ हाँ सॉरी। हाँ, ठीक है ठीक है। और यहाँ मिल जाएगी मेरे को, मतलब कहाँ? ये जयपुर में है। आपको उसमें जब आप साइट में जाओगे ना तो वहां पर वो ऑप्शन दिए है बाई बुक्स करके। अच्छा। तो उसमें आप जो आपको किताब चाहिए उसका नाम डाल दीजिए, तो आएगा हाँ कि सर। ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है, कौन सी लैंग्वेजेस में है। ओके तो फिर ओके आप सर। वहां से वो इंग्लिश खरीद सकते हैं अगर है तो। ओके सर। ठीक है। ओके थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। ओके। ओके। जय जिनेन्द्र। थैंक यू कल्पेश भाई। थैंक यू नो सौरभ वरीज। सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द थैंक यू शिल्पा जी, बेस्ट। थैंक यू। हाँ।